पैशन जो है कि हमारी बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्वालिटी का कैसा हो सके, तो इस पर इन्होंने काफ़ी काम किया है और हम इन्हीं से सुनेंगे इनकी कहानी कि इन्होंने क्या किया है। तो हम अनिकेत जी से कहेंगे, अनिकेत नंदा, कि आप हमारे दर्शकों से मिलें और अपने बारे में कुछ बताएं। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। Let me try unmuting him. तो हमें आनंद होता है कि अनिकेत और देवांग, ये दो हमारे जो भाई हैं, वो यहाँ आए हैं और हमारे साथ उनके जो अनुभव हैं वो, इससे आपको भी सभी को प्रेरणा मिलेगी, हमको भी मिलती है। उनके बारे में हम जब सुनते हैं, उनकी सारी कहानियाँ जब सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आपको भी लगेगा, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि हमारा जो ये अनुभव है उसमें और हमें अनुभव आया कि अगर हम प्राकृतिक अन्न खाते हैं तो प्रकृति हमारा जो शरीर है उसको अच्छी तरह से बनाता है, बनाए रखता है, और उस शरीर में रहकर हमारा जो जीवन का अनुभव है वो अनुभव बहुत अच्छा होता है। तो ये है प्राकृतिक आहार का महत्व। ये आप सभी को पता चले, आप सभी को इस, हमने ये सत्व का कार्यक्रम शुरू किया है। तो सत्व जो है ये पुणे में हमने शुरू किया हुआ एक स्टार्टअप है। ओके, तो इसमें पूजा बहन जो है हमारी, वो इसको चलाती हैं। हमारे साथ दो और बहनें हैं हमारी जो चलाती हैं। उनका एक का नाम है साइली पितड़े, वो न्यूट्रिशनिस्ट है, और हमारी योगा और योगा थेरेपी, नेचुरोथेरेपी, ऐसी हमारी जो एक पार्टनर है वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अभी हमारा 30 दिन का एक कार्यक्रम चल रहा है, 30 डे डिटॉक्स का, जिसमें हम लोगों को उनके आहार के बारे में बताते हैं, उन्होंने किस तरह का आहार रखना चाहिए उसके बारे में बताते हैं, और प्रतिदिन सुबह 6 बजे या 7 बजे लोग 1 घंटा सबके साथ मिलते हैं और योगासन, प्राणायाम और ध्यान, इन तीनों चीज़ों का अभ्यास करते हैं। तो हमें आनंद है कि हमारे इस कार्यक्रम में आज अनिकेत और देवांग, ये दोनों आए हैं हमारे भाई। All right. So Aniket, I think Aniket is ready now. हाँ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। Yes, namaste Vikramji, namaste Pooja, and a uh, warm greetings to everyone on the call. Vikramji, thank you so much for the wonderful introduction and for the opportunity to be sharing my experiences here with Sattva.life, this incredible platform that you have created for us, for everyone in general, to help benefit humanity, build better health, as you have helped me. So, and as you, such a wonderful analogy you give, in my profession, I build good quality buildings, and similarly, I try to build a good, strong immunity system, a good, strong body that nature has given me. So everyone, as Vikramji mentioned, from Pune originally, a civil engineer, and currently I'm working in Washington, D.C. I did my schooling in Pune, Maharashtra Institute of Technology. Here I went to North Carolina State University. And I'd like to mention that from the very beginning, I was very health conscious in that I would always, from the age of 18, 19,
I used to go to the gym and train so that I have a good physique and don't go on the heavier side. And at that time, also it was important to me that I eat the right things. Moving on further in life, as I grew up, as I came here to the US, I also got into martial arts. So over the last 15 years, I've been doing both martial arts and training myself. But there was one thing that was missing, which was the natural diet part of good habits. And several years back, I started getting these allergies on my hands, on my legs, various parts, on my back many times, wherein I would get these red patches on my skin, which would itch. And I couldn't figure out what the problem was. In fact, I went to the doctor and did all kinds of allergy tests, and everything came negative. So I was taking a dose of this thing called levocetirizine. It was a medicine that the doctor gave. It was an anti-allergy, anti-inflammation type of medicine I used to take once a day in the morning, and that would alleviate the problem, the itching and the redness. And just some time back, in the last 2 years or so, I was very lucky and fortunate enough to meet Vikramji, and that's when I got introduced to the whole concept of natural eating and diet purification. So I actually started applying the principles of, like Vikramji has explained many times, of intermittent fasting, eating natural foods. And that, in fact, was a life changer that happened to me, because once I started following these principles of intermittent fasting, of eating natural foods, these allergies and rashes went away by themselves by following the principles of eating during just the daylight hours between 9:30 to about 6:30 in the evening, and also spacing out my meals, eating only when hungry, reducing the amount of meals. Basically, what I realized was that I was eating too many foods too often, and too much of the wrong type of foods. That aspect, which I had not realized before. I thought that, hey, if I go to the gym and just be fit, do my jogging, do my weightlifting in the gym, that's fine. But there's another aspect of it which I was missing, which is eating the right food at the right time and in the right quantity. And that is what I realized that was creating the problems of the rashness and itchiness in my body. Because by putting the wrong stuff into me too often, it was creating what you call as inflammation. And that inflammation was what I was seeing on the outside as the rashes and the itchiness. So anything that you put into the body that is unnatural, there's a reaction to that. And that's exactly what was happening. And nobody told me this. In fact, I went to many doctors, allergy specialists, and general practitioners, but nobody told me this. And this was a self-realization that happened to me after meeting Vikramji and reading up on all his articles and from the information that's available on satpro.life. So Vikramji, I will always be indebted to you, as I said, for that. And since then, by following these principles of intermittent fasting and spacing out my meals, eating only when hungry, and eating only up to about 60, 70% full, I've realized that I am much more healthy and happy. I'm feeling a lot lighter. I can do a lot more. I don't feel sleepy as often. Those are some of the benefits that I have realized. And I'll give you a slight example of how this has helped me. A very simple, small example. Just some time back, usually in the winter over here in the US East Coast, the winters are pretty brutal, and especially with the change in weather from summer to autumn, and then autumn to winter, it takes some time for the body to adjust. So inevitably, every cold season, I used to either get a cold and a cough, or that used to put me out for 2 weeks. I used to go to the doctor. He would give me medication, cough syrup, cold medication. And this time I was starting to get a cold some time back, a couple of weeks back. So I followed the basic principles again. I reduced my meals to about just only 2 times a day. Usually I have about 3-4 meals a day, but I spaced out, from the morning. But
now I reduced it to only 2 meals a day. I had some light sprouts in the morning, some light fruits and sprouts late in the evening. Had warm water with kada, and if you imagine, believe it or not, I was able to recover completely within 3 days, without taking any medication and without meeting the doctor, just by maintaining raw diet, eating less, because that's what allowed my body to recover and focus on its inherent function of defending the body against viruses, rather than breaking down the food which it does not need in excess that we put into it. So that is one example, which a very, very simple, very, very common example of everyone gets colds. And if you just follow the basic principles of eating less, eating natural food, your body can focus on fighting this virus, like I said earlier. And that was just a reiteration. That was just underlining everything that I learned from Sattva.life and from Vikramji. So that is wonderful. That is so wonderful. Aniket, this story is so fantastic. तो अनिकेत ने हमसे जो उनका अनुभव शेयर किया, उसमें ऐसा था कि उन्होंने केवल 2-3 नियमों का पालन किया. सिंपल है, ऐसा उसमें कठिन कुछ नहीं है. तो नियम कौन से हैं कि मुझे जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा. दूसरा ऐसा है कि मेरा पेट भर करके नहीं खाऊंगा. इन्होंने जैसे, तो उसमें पूरा का पूरा जो बर्तन होता है उसको धनिया और वो कोकोनट ऐसा सब भर के नहीं रखते हैं, आधा ही भरते हैं और थोड़ा सा उसमें पानी डालते हैं, तब मिक्सर चलाते हैं, तब जाकर के वो उसकी चटनी अच्छी बनती है. तो इसी तरह से हमारे पेट में भी वही होती है प्रक्रिया. तो उसमें अगर हम ये ध्यान रखें कि पहली बात तो ये है कि हमको जब भूख लगेगी तभी खाएंगे, और उसके बाद पेट पूरा ना भरें. हम कहते हैं कि आधा पेट भरें केवल. वो है कि हमें एक छोटी सी डकार आती है, उसके बाद में हमने रुक जाना है और फिर जो खाया है उसको अच्छी तरह से पचने देना है. ठीक है. और उसके बाद जब वो पूरी तरह से पच जाएगा तब हमें एक सूखी डकार आती है, जो भूख की डकार होती है कि हमारा शरीर हमसे कह रहा है कि अभी उसे और खाना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, उसके बाद आधा 1 घंटा और रुकेंगे, जब अच्छी तरह से भूख लग जाती है तब हम उसके अंदर खाना डालेंगे. तो हमारा ये अनुभव है कि आजकल हम जो सब घर में बैठ करके काम करते हैं, कई लोग जो हैं वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ करके काम करते हैं. तो इस परिस्थिति में हमें 2 से अधिक बार खाना खाने की आवश्यकता नहीं होती है. मेरा तो अनुभव यही है, क्योंकि मेरा तो ऑफिस जॉब है, मैं यहीं ऑफिस में काम करता हूँ, कंप्यूटर के सामने बैठा रहता हूँ. शरीर जो है, जैसे अनिकेत तो खैर, अनिकेत दिन भर उनके कभी साइट पे होते हैं, कभी दौड़ धूप करते होते हैं, तो उनको अगर ज़्यादा भूख लगेगी तो उन्होंने खाना चाहिए और वो वैसे ही करते हैं. लेकिन हमें तो उतनी भूख नहीं लगती है, तो हम जब भूख लगेगी तब खाना खाते हैं. पहली डकार आती है तो रुक जाते हैं और जितना हो सके प्राकृतिक अन्न खाते हैं. प्राकृतिक मतलब जिसके ऊपर कोई प्रक्रिया गया हो या तला ना गया हो, कुछ ना किया हो. जैसे प्रकृति में अन्न तैयार होता है वैसे हम उसको खाएंगे. और ये भी जैसे अनिकेत ने कहा कि सनलाइट आवर्स में, यानी दिन में जब सूर्य ऊपर होता है तब, तो हम तो कहते हैं कि 10 और 6 के बीच में, 10 और 2 के बीच में जो है ना, वो हमारी जो जठराग्नि होती है, यानी डाइजेस्टिव फायर, वो अत्यधिक प्रज्वलित होती है. तो उस समय जब खाना खाते हैं कुछ भी, तो वो अच्छी तरह से पचता है. लेकिन हम कहते हैं कि सुबह 10 से शाम को 6 के बीच में आप कभी भी खाओ खाना. मैं तो बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, कभी 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ, 4 से 5 के बीच में तो उठ ही जाता हूँ. तो उसके बाद मैं आसन वगैरह करके तो मुझे 8 बजे तक बहुत भूख लग जाती है. तो मैं 8 बजे कुछ प्राकृतिक अन्न का नाश्ता करता हूँ और फिर दोपहर को 1 से 2 के बीच में मेरा खाना होता है. उसके बाद में, तो इस तरह से मेरी दिनचर्या चलती है. आपको जिस तरह से सूटेबल हो आप करेंगे उसको. और इस तरह से अगर आप जब रहेंगे, और रात भर का जो एक उपवास होता है हर रोज 14 घंटे का, 16 घंटे का, 18 घंटे का, तो उसमें आपका शरीर हमेशा अंदर से स्वच्छ और स्वस्थ रहता है. तो इसका अनुभव
अभी हमारे देवांग भाई बताएंगे कि उन्होंने इसके ऊपर क्या प्रयोग किए हैं और उनका अनुभव तो सुनने लायक है। तो देवांग भाई अगर आप बताएंगे अभी तो हमें अच्छा होगा, अच्छा लगेगा। देवांग भाई को अगर हम अनम्यूट कर सकें तो अच्छा होगा। हाँ, मैं उनको देवांग, अनम्यूट करती हूँ। तब तक अनिकेत के लिए एक क्वेश्चन है कि उनको ये डाइट फॉलो करने के लिए कुछ चैलेंजेस आए क्या? व्हाइल ही वाज ऑन दिस डाइट, डिड यू फेस एनी चैलेंजेस? you have to unmute him again. Oh, Hanji, I did have some challenges. In fact, the main challenge was that at home, my wife, she cooks such delicious food that it's difficult to stop at 50%. Like Vikramji said, after the first burp, you should stop. But with practice, since I used to go, usually when I used to eat meals before I started this process of diet purification, I used to go sometimes eat 100, 110% of capacity, till I'm overfull, so that because of, everyone loves food, everyone, loves eating. What we fail to realize, and what a very good analogy that Vikramji told me earlier on, was that every living creature, be it animal or every living thing in this planet, follows this basic principle of nature: to eat only when hungry and eat only the amount that will be digested by its system, except humans. We humans just tend to go overboard and eat anytime, anything we want, and in whatever quantity. And that's why we are having most of these common health problems that are prevalent. And that's why we have to have all the different medication and vaccines and all these different processes by going to the doctor. But if you go back to the basics and go back to the way all natural things, all living things also function, which is to eat only when hungry and eat in the quantity that's that's good enough for us, as Vikramji said, only up to the first burp, just like other natural things, then we would be a lot better off. And in fact, I'm also training myself to eat only up to 50% up to the first burp. Right now, I'm going to about 70%. So that was a challenge for me. Now, the challenge for me going forward is reducing that 70% to 50% up to the first burp. Specific diet I started after allergy issues. Well, Rima, the thing is that all my allergy tests came negative. Okay, I used to get these rashes, like I said, on my hands, and they used to itch all the time. So I did, the anti dairy products, the dairy products or the meat. For one, I'm vegetarian, so that was never an issue. It was more like the peanuts and the nuts type of issues. So there were like all the general doctor, he did the allergy test first. Then I went to a specialist for allergies, and all the tests came negative. So I really didn't have to change my diet. But what I did change after meeting Vikramji and following the principles of diet purification was eating only when hungry and eating only up to 50% capacity and eating less of cooked food. So that's what basically helped me. The thing that I was doing wrong was eating a lot of unnecessary food, like let's say samosas, mithai, chivdas. Wo Haldiram's ka jo hota hai, I'm sure you all have heard Haldiram's, all those chivdas. I'm not saying don't eat that, but what that is that is all unnatural. That is all processed food. And the more you focus and more of natural food that you intake, the better effect it will probably have on you, as it did for me. There was also, I believe, another question about to get rid of cold and cough. I suggest, I assume that is directed to me. So for me, I just the diet that I had while I was having a cold and cough was just very, very light natural food. In the morning, I had some sprouts, just 2 meals. I had some sprouts, as I, uh, yeah, just a small mixed sprouts and cucumber. And late afternoon, when I got home from work, I had some lightly cooked dal and rice, just a small helping, just because I was out all day and I was feeling a little hungry. And that's what I did for 3 days. And within 3 days, the cold and cough went away because I allowed my body to focus on its natural inherent function, which is to defeat the microbes or the viruses that are attacking. Does that answer your question? yeah, it does. Thanks, Aniket. So, so I think questions will keep coming, and we might have some other questions as well. So,
why don't we have Devang start with the story, and then we'll take the questions as we go on. Thanks, Aniket. Over to you, Thank you. Dev. Can you hear me? Yeah, we can hear you and see you too. Okay. Jai Shri Krishna to all. Good evening. Thank you, Dr. Vikram sir and Pooja, for inviting me here to share my journey of raw diets. And to introduce myself, I am Devang Karia, a Guju man from Thane, Mumbai, India. And I started this journey 2.5 years back. Till March 2018, I was a obese person. I was my weight was 104 kgs. It was always above 100, and I thought that I am a healthy man. I was a big foodie. I'm a Guju. So at home we always have sweets and namkeens and farsan and all that stuff. And I never cared about my health at all. Always looking up to what's my next meal. And luckily, only in the name of exercise, I just used to go for morning walks. That's it. And I always tried to do a brisk walking, but that was okay. I mean, I was never satisfied, and my weight never came much down. But luckily, in March 2018, I got a chance to attend a lifestyle seminar, health seminar, which was which is conducted even nowadays, and it was by Mr. Atul Bhai Shah of Ojas Lifestyle. And I went and listened to him for 2.5 hours, and that made a very big impact on my health. And it hit me so much that I took it very seriously. I understood that what the healthy diet should be and what I was doing to with myself. I didn't have any other ailment at all. My age is 44 now. 2.5 years back, I started with this. And after listening to him, right from the very next day, I started with all the tips which he had given. And I started it very happily. And in the first month itself, I lost 8 kgs. In first 100 days, I lost 20 kgs. My height is 5'9", and it had to be brought up to 70, 71. And as the weight started coming down, I was so much happy that I followed it very happily. I didn't have any issues at all. And to my surprise, in just first 6 months, I lost 31 kgs. From 104, it came to 73 without any issues. In fact, my energy levels increased, my stamina increased. I was going for the walks, and I started slowly, I started running. And in another next 3 to 4 months, I was able to run 10 kilometers non-stop. The things which I should have done in my early 20s, I started doing at the age of 42. I started running daily practice of 7-8 kilometers. I started taking parts in marathons. First, I used to go for small marathons, small runs of 10 kilometers. And then gradually my practice increased. And in this year, in Jan and Feb 2020, I participated in half marathons of 21 kilometers. And my best timings for half marathon is 2 hours 10 minutes. So, it was absolutely wonderful. And I think the tips which Atul Bhai had shared with us in Ojas Lifestyle Seminar, it is to give 5 elements to the body, which we all know that हमारी body 5 तत्वों से बनी है. तो जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी. बस ये 5 तत्वों को शरीर को डेली बेसिस पे देना है खान पान के तरीके से और उपवास के तरीके से. तो वो करते करते मेरा वेट लॉस हो गया. जो पहले मैं कचरा लेके घूम रहा था अपने शरीर में 31 kgs, वो सब बाहर आ गया. And that came out by doing enema. So enema is very important. I did for 140 days non-stop twice a day. And it's a very important element to bring out all the wastage which is there in our stomach for the obese people. It is very important. It even helps to get cure of diseases. Enema is that much powerful.
And then slowly, I mean, when I started, I had given a window of 10 hours for myself, which includes breakfast, lunch, dinner. 8:30 to 6:30 I used to follow. Then I gradually, slowly, I shifted to 9, 9:30, 10, 10:30. Then that was my fixed timings. 10:30 is my breakfast and 6 o'clock is the dinner. Only 8 hours bracket. And in that bracket, breakfast, lunch, and dinner, that is more than enough for the body. And rest 16 hours is intermittent fasting. Earlier, I used to drink water in those 16 hours. But nowadays, I don't even drink that. 15 to 16 hours is completely on air diet. And that is more powerful. तो I mean, पेट को खाली रखना चाहिए, शरीर को खाली रखना चाहिए, आकाश तत्व ज्यादा देना चाहिए. So this is about my journey, and I would recommend everyone should follow raw diet and get cure of diseases. Weight loss करना कोई बड़ी बात नहीं है. Weight loss तो by product है if you follow raw diet. But to maintain it and raw diet, now I am a foodie for a raw diet, and I eat cooked food, but I eat in the dinner, only in the dinner, and that we call 80-20 ratio. 80% is raw food and juices, and 20% is cooked food. And 3-4 items are completely stopped. That is dairy products, wheat, मतलब गेहूं और मैदा, और शक्कर का रिप्लेसमेंट है गुड़, और बस ये 3-4 चीज छोड़नी है, और रिप्लेसमेंट काफी सारी चीजें हैं. एंड एवरीबॉडी शुड फॉलो दिस टू, अगर आगे की जिंदगी में डॉक्टरों के पास नहीं जाना है, दवाई नहीं खानी है, तो दिस इज द बेस्ट फॉर्म टू लीड अ हेल्दी लाइफ. थैंक यू. Awesome. Thank you so much, Devang. So अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं तो उसमें देवांग का ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत क्लियरली दिखेगा. ये कहानी इतनी अधिक प्रेरणादायक है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता. तो बॉटम लाइन ये है कि देवांग भाई ने अपना जो आहार था उसमें करीब 80% प्राकृतिक किया है, और अभी भी वो जो खाना खाते हैं, रात में थोड़ा बहुत वो पका हुआ खाना खा लेते हैं. इसमें जो सिद्धांत है वो ये है कि आप जब अन्न के ऊपर कुछ भी प्रक्रिया करते हैं तो उस प्रक्रिया के कारण उस अन्न में जो सत्व होता है जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है, वो सत्व कुछ मात्रा में घट जाता है, और शरीर को जितना सत्व आवश्यक है उतना सत्व तो उसको आपको देना ही होगा. तो क्या होगा कि कम सत्व वाला अन्न अगर हम खाएंगे तो हम फिर क्या होगा कि सत्व उसमें से हम निकाल लेंगे, और जो बची हुई वस्तु होगी उसको हमारे शरीर को फेंकना ही पड़ेगा. यानी क्या होगा कि हमारा शरीर जो है ये कम सत्व का अन्न खाने के कारण गोबर मैन्युफैक्चरिंग मशीन बन जाता है. तो ये हमारा शरीर जो है ये गोबर मैन्युफैक्चरिंग मशीन है या इससे अधिक कुछ है. इस शरीर से हमें उसका किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए ये हमने सोचने की आवश्यकता है. तो हम सत्व के माध्यम से लोगों तक जो सत्य पहुंचाना चाहते हैं वो ये है कि हमारा जो शरीर है उस शरीर का उपयोग हमने जिसके लिए प्रकृति ने उसे बनाया है उसी के लिए करें, उसके अलावा ना करें. यानी देखिए, हमारे पास ये एक स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन का उपयोग हमने क्यों करना चाहिए कि हमने उसमें से फ़ोन तो करना चाहिए, फ़ोन के लिए आवश्यकता है. बाद में उसमें ऐसा है कि इंटरनेट के कारण हमें काफ़ी उसमें जानकारी मिल जाती है हमारे उपयोग के लिए. ये उपयोग उसका बहुत अच्छा हो सकता है और होता भी है. A cell phone is a beautiful device. It's a wonderful device. It's a wonderful tool for our. उपयोग किस तरह से करते हैं, उसमें अनेक प्रकार के जो फ्री डाउनलोड्स होते हैं उनको हम डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करते 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 वो सारा का सारा फ़ोन जैम हो जाता है. फिर क्या करना पड़ता है हमको,
कंट्रोल ऑल डिलीट तो हम ये लैपटॉप में करते हैं, इसमें क्या करते हैं, गो बैक टू द सेटिंग्स, फिर गो बैक टू द फैक्ट्री सेटिंग्स। उसको फैक्ट्री सेटिंग अगर कर दिया तो उसके बाद में फ़ोन बहुत अच्छा चलता है। तो ऐसा है कि ये हमारा जो डिवाइस है शरीर का, उसमें अगर हम फ्री डाउनलोड करते रहें और हमने उसको पर्ज किया ही नहीं, कभी डिलीट किया ही नहीं, तो क्या होगा, ये जैम हो जाएगा। पर अगर उसमें ऐसी ही वस्तु डालें कि जो उसके लिए उपयुक्त है और केवल उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में उसके लिए वो आवश्यक है, तो ये जो डिवाइस है, ये हमारा शरीर रूपी जो यंत्र है, वो प्रकृति की कृपा से प्रत्यक्ष अनुभव है। और इस अनुभव को हम जब लोगों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, ऐसा है कि जब तक इसको आप अपने जीवन में उतारोगे नहीं और इसका अनुभव आपको आएगा नहीं, तब तक मैं अगर बताऊंगा या देवांग भाई बताएंगे या अनिकेत भाई बताएंगे, तो ये सारी कहानियां सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। These are all wonderful and very positive fairy tales. Okay. But unless you experience them within you for yourself, they will remain only that, fairy tales. तो ये हमारा आपसे कहना है, ये हमारी आपसे विनंती है और आग्रह है कि आप इसको करके देखें। हम पर विश्वास ना करें। विश्वास किसी पर भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास हमेशा अंध ही होता है, वो अंधविश्वास ही होता है। अंधविश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुली आंखों से देखें और फिर स्वयं प्रयोग करके देखें और स्वयं अनुभव करके देखें, फिर हम पर विश्वास करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो देवांग भाई और अनिकेत भाई, आपने आपका अनुभव हमें बताया, इसके लिए आपके हम बहुत आभारी हैं। और हम अगर आपके लिए हैं स्पेसिफिक, देवांग भाई के लिए या अनिकेत भाई के लिए, आप उसके उत्तर देंगे या फिर उसका अगर उत्तर मैं दे सकता हूं तो मैं दूंगा। राइट, सो हमको क्वेश्चंस आ गए हैं ऑलरेडी। सो Aniket, question for you: how do you manage socialization? And Devang, the same question is for you too. So Aniket, maybe you can go first. Hanji, yes. Thanks, Pooja and Vikramji. I did see that question come through from Pallavi, and from what I understand about that question is, as far as socializing is, she probably means when I go out to someone else's house, or if there's a party or something, and if I don't eat over there properly, then it might be I might appear as though I'm offending my host. So I will answer that by saying that go back to the basics only. If you yes, we're going to someone else's house and they've offered us a meal, sure, go ahead and eat it. But I would say eat less. If they've put like 5 dishes, rajma banaya hai, dal बनाई है, रोटियां है, नान है, सब कुछ है, मिठाई भी है, तो उसमें से इतना पेट भरने से, वो पूरा पेट भरने से अच्छा प्लेट को 30% या 40% भर लो और उतना ही खा लो. Instead of eating a full plate, just eat less. So that way you're not offending your host by eating. At the same time, you're following the basic principles that you should for diet purification by eating less. So, and by eating less also, and then like Devang said, let's say there's something great made for the evening for dinner. चलो वो 7:30-8 बजे खा लिया, तो उसके बाद just make sure that in the next day when you eat, you're maintaining enough time for your body to digest that food before having the next meal. तो अगर चलो हम बाहर गए शाम को सोशलाइजिंग करने के लिए, 8 बजे हमने खाना किया. Usually I try to finish my food by at least latest by 7. Okay, after coming home from office and all, I try to finish by at 6. I try for 6, but usually 6 doesn't happen. So 7 बजे तक होता है. And then my next meal I have in the morning, not before 9 o'clock. So that's from 7 to 9 is 14 hours. So usually I'm maintaining 15 hours of overnight fasting. But let's say I've had a more heavy meal than normal at a friend's house, at a party, and I finished by 8 o'clock or 9 o'clock. Then what I will do is the next day I will have only at maybe around 12 or 1 o'clock. That way it has given enough time for my body to digest what it has had the night before. So that is one way to manage socializing, if that answers the question. Would you agree, Vikramji or Pooja?
ये इसकी कहानी मैं बताऊंगा। देवांग भाई अपनी कहानी बताएं, फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में। देवांग भाई अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। और एक रिक्वेस्ट है कि हम हिंदी में बात करेंगे तो आई थिंक सबको बेनिफिट होगा। सो अगर सबके लिए ठीक है तो या सोशलाइजिंग की जो बात की ना पल्लवी जी ने, तो जब मैंने स्टार्ट किया था, जो पहले 6 महीना जो मेरा था काफी इंपॉर्टेंट था, मुझे वेट लॉस करना था। तभी तो मैंने एकदम रिलीजियसली, एकदम शिद्दत से मैंने फॉलो किया। उन दिनों में मुझे 1-2 शादियों में जाना था, तो मैं उन शादियों में मैंने सलाद ज्यादा खाया, पका हुआ काफी खाली नाम मात्रा के लिए मैंने खाया था। पर एक बार मेरा टारगेट अचीव हो गया और मैं सब मुझे मतलब मेरा शरीर को कैसे कंट्रोल करना है मुझे सब ट्रिक्स पता चल गया। सो आफ्टर दैट whenever I happen to go to restaurants or marriages or functions or even अगर फैमिली ट्रिप पे मैं गया हूँ तो मैंने इसमें का कुछ भी फॉलो नहीं किया है। I eat completely cooked food throughout the day, breakfast, lunch, dinner. I enjoy the food, but because I know the tricks, तो मैं वापस आने के बाद अभी समझो समझो होटल में गए हैं बर्थडे पार्टी के लिए या कुछ भी, तो रात को लेट खा लिया, उस दिन कोई मैंने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, तो दूसरा दिन मैं सुबह पहले एनिमा कर लेता हूँ और दूसरा पूरा दिन मैं केवल फ्रूट जूसेस पे रहता हूँ, मतलब शरीर को आराम देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्टिंग में 6 महीना मैंने सब एकादशी, पहले में एकादशी था वो मैं सब मतलब अनवांटेड चीजें हम खाते थे, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा वगैरह वगैरह, वेफर्स, और मैं सोचता था कि ये धर्म के लिए करना चाहिए, पुण्य मिलेगा, पर वो कंप्लीटली गलत बात है। हमको सेमिनार में अतुल भाई ने बताया, यू आर फूलिंग योरसेल्फ एंड यू आर फूलिंग गॉड। एकादशी इज नॉट फॉर गॉड, इट इज फॉर द बॉडी। तो मुझे उन्होंने बोला कि जल और निर्जल इज ओनली द वे टू डू उपवास, तो मुझे काफी हिट कर गया। तो मैंने नक्की किया कि मैं डायरेक्ट जल या निर्जल पे नहीं जा पाऊंगा, तो मैंने पहली 6 महीने में जो भी एकादशी आई, जो हर 15 दिन में एक बार आती है, तो मैंने सिर्फ फ्रूट्स पे निकलना शुरू किया, ओनली 24 आवर्स ऑन फ्रूट्स, एंड दैट्स वेरी इजी। 6 महीने हो गए, उसके बाद मैंने पानी पे ट्राई किया। ओनली द फर्स्ट वन वाज डिफिकल्ट टू बी ऑन वाटर फॉर 24 आवर्स, but I did it successfully, happily, and then after for 8 months all ekadashis, that is twice in a month or once in 15 days, सब मैंने पानी पे निकाला। और तभी मतलब शरीर को खाली रखो, शरीर को आराम दो, किडनी लीवर को हमको आराम देना है। उसके बाद from June 19 all ekadashi I started doing on air fasting, air diet, no water at all, and the first one I did was for 36 hours, and from there on till today I have done all ekadashis without water. Minimum time which I have done is 24 hours, and maximum just last month I did for 110 hours, and in those 110 hours I did enema for total 9 times, that is 4.5 days। दिन में 2 बार एनिमा किया, तो चौथे दिन रात को, शाम को, और 5वें दिन सुबह एनिमा किया, तो पूरा शरीर मतलब इंटेस्टाइन से जो एनिमा, वाटर एनिमा किया, ब्राउनिश ब्लैक सब्सटेंस सब बाहर निकला है मेरे शरीर से। मैं इतना अच्छे से मेंटेन करता हूँ बॉडी को, फिर भी मैं कुक फूड शाम को तो खाता ही हूँ, तो भी वो जो इंटेस्टाइन में कचरा फंस जाता है वो सब 110 घंटा मैंने निर्जला किया। और ये मैंने इसके लिए किया कि बॉडी में से कचरा निकालना है, और भी नवरात्रि आ रही है, तो मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 9-9 दिन तक पानी नहीं पीते हैं, नवरात्रि का उपवास करते हैं, एंड आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट। सो इन जुलाई 2020 I did for 65 hours Nirjala Upvas, air diet. In August, I did for 72 hours. In September, I did for 110 hours. And for अभी अक्टूबर, अभी 17 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू होगी, so I wish to do for 9 days. Let's see कितना कर पाता हूँ। So जब मैं बाहर जाता हूँ, होटल्स में जाता हूँ, तो मैं मैदे की मैं नानी मंगाता हूँ सबसे पहले। मैं स्वीट भी खा लेता हूँ, फरसान भी खा लेता हूँ, पर वो कभी महीने 2 महीने में होता है। पहले मैं हर हफ्ते को सब जंक फूड खाता था, अभी 2-3 महीने में एक बार। आई सैटिस्फाई माय क्रेविंग्स दैट वे, बट बिकॉज आई नो ऑल द ट्रिक्स, फिर आके मैं उपवास कर लेता हूँ, 1-2 दिन जूस पे निकाल लेता हूँ, एंड दैट मतलब मैं अपनी बॉडी की सुन लेता हूँ और बॉडी को मैं भी मेंटेन करना जानता हूँ। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन की वजह से और बारिश की वजह से 6 महीने में मेरा रनिंग टोटल बंद है। अभी पिछले हफ्ते से मैंने सिर्फ वॉकिंग शुरू किया है, बट मेरा वेट मेंटेन्ड है, वही है 75 to 78। मेरा वॉकिंग रनिंग टोटल बंद है। जहां मैं रोज का 10-12 किलोमीटर दौड़ता था, 6 महीने में आई हैव नॉट इवन रन फॉर अ किलोमीटर आल्सो।
अभी मेरे को वो फॉर्म वापस लाने के लिए मुझे 2 महीना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे वो फॉर्म वापस मिलेगा, बट मेरा वेट मेंटेन्ड है, आई एम हैप्पी विद दैट. So that's it. I enjoy cooked food also, but at regular intervals, not daily basis. So Devang, while you are talking about that, there's another question. By air diet, don't you feel weakness? Sorry, I didn't hear you. Air diet से आपको weakness नहीं feel होती है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं कोई, बिकॉज मैंने अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन किया है. पहले 6 महीने तक मैंने सब एकादशी फ्रूट्स पे की, फिर 8 महीने तक सब एकादशी मैंने पानी पे किया, फिर मैं निर्जला पे आया. एंड डेली बेसिस, मतलब डेली 10 घंटा तो सबसे हो ही जाता है, रात को हम सो जाते हैं बाय डिफॉल्ट, तो तभी तो कोई पानी पीता नहीं है. तो स्लोली मैंने टाइमिंग्स बढ़ाया है, कोई वीकनेस नहीं, कुछ नहीं. एंड आई हैव ट्रेन्ड माय माइंड एंड बॉडी विद दैट. आई स्टार्टेड विद 12 आवर्स, स्लोली उसको मैं ग्रेजुअली बढ़ाते अभी 2.5 साल के बाद में ये पोजीशन पे आया हूँ. एंड आई कीप टॉकिंग विद लाइक माइंडेड पीपल एंड गेट मोटिवेटेड. अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मोटिवेशन मिल रही होगी कि नहीं पता नहीं, पर आपको बोलने से मेरा मोटिवेशन और बढ़ रहा है कि मैं यहाँ पे किसी को बता रहा हूँ तो मैं चीटिंग करते समय मैं सतर्क हो जाऊंगा कि नहीं, अभी मैं इतनी अच्छी बातें कर रहा तो मैं चीटिंग कैसे कर सकता हूँ. सो नो वीकनेसेस एट ऑल, एंड स्लोली ग्रेजुअली इसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना है. बहुत बढ़िया देवांग भाई, ये सुनकर हमें सबको बहुत अच्छा लगा. मैंने जैसा प्रॉमिस किया था तो मैं बताऊंगा कि ये सोशलाइजेशन का क्या है. तो मैंने जब प्राकृतिक अन्न खाना शुरू किया और मैंने ये तय कर लिया कि मैं केवल दिन में खाऊंगा खाना और केवल प्राकृतिक अन्न खाऊंगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सब लोगों को पता चल गया, हमारे मित्रों को. अब इसमें एडवांटेज कैसा है देखो, सोशलाइजेशन में मुझे किसी के घर जाने में किसी प्रकार का कोई डर नहीं, क्योंकि आप जो रसोई करोगे, आप जो खाना बनाओगे, उससे मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं आपका पका हुआ, मुझे अपने घर बुलाने में कोई डर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे खाना खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं, कभी बुला सकते हो. तो आपको क्या करना है, अगर मुझे बुलाया, एक तो ऐसी बात है कि मैं अगर भूख लगेगी और भूख लगी होगी तभी मैं खाना खाऊंगा. तो मेरे घर में मैं जब खाना खाता हूँ तो क्या करता हूँ कि मेरे टेबल पे मेरे सामने एक प्लेट रखता हूँ और जो फल वगैरह मुझे खाने होते हैं वो रखता हूँ, और एक छुरी होती है हाथ में. तो एक एक फल, छुरी, जो सीड्स और नट्स होते हैं, मूंगफली के दाने हो गए, बादाम हो गए या अखरोट हो गए, उनको हम रात को भिगो करके रखते हैं और फिर सुबह खाते हैं. और इसमें भी ऐसा है कि जितनी आपको भूख होगी उतने ही खाना है. तो मेरा ऐसा अनुभव है कि हमारे पेट का जो साइज होता है ना, वो अपनी अंजुली के जैसा होता है, और वैसे वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब रबर ट्यूब होती है ना, तो तन भी सकती है, ठीक है. पर तनने के बाद में फिर से जब खाली हो जाती है तब उसका साइज कम हो जाता है, और होना चाहिए. पर हम अगर उसको हमेशा भरा रखें, हमेशा उसको ज्यादा खाना डालते रहें उसके अंदर, तो उसका जो इलास्टिसिटी है ना वो खत्म हो जाती है. यानी उसका जो तनने का जो एक उसकी जो एक ये होती है ना, स्वाभाविक, क्या कहेंगे उसको, कैरेक्टरिस्टिक, हिंदी में क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, उसका जो गुण होता है, वो गुण जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है. फिर वो इलास्टिक के बजाय प्लास्टिक हो जाती है, यानी जैसे तन गई तो तन ही रही, छोटी हुई नहीं. फिर क्या हुआ, फिर ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने हमारा जो पेट बनाया है वो खाते समय या खाने के बाद थोड़ा तन जाएगा और फिर वो सिकुड़ जाएगा फिर से. ऐसा होना चाहिए. तो उस तरह से हम लोग जब रहना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि कम अन्न में भी हमें अधिक ऊर्जा या पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है, शक्ति मिल सकती है. तो उससे हमारा बहुत अच्छा चलता है. अब आप मुझे बताएं कि आपके पास ऐसी गाड़ी है कि जो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 40 किलोमीटर चलती है, और दूसरी गाड़ी ऐसी है कि जो 1 लीटर पेट्रोल में केवल 10 किलोमीटर चलती है. तो आपको कौन सी गाड़ी पसंद? तो 1 लीटर में 40 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी आपको अधिक पसंद होगी, है ना. अब देखिए, आपके पास गाड़ी तो एक ही है,
पहले आप उसको 1 लीटर में केवल 10 किलोमीटर चलाते थे। यानी कैसे चलाते थे? लोअर गियर में चलाते थे। पर वो अगर हायर गियर में चलेगी, जैसे उसने स्पीड पकड़ ली और हायर गियर में चलाया, तो 1 लीटर में 40 किलोमीटर चलती है। तो जब हम हमारे, तो फिर वो 1 लीटर में 40 किलोमीटर चलती है। ये हमारा अनुभव है। अब देखिए, ये शरीर जो है हमारा बना हुआ, समझ लो कि ये विमान है। तो विमान में हम किस प्रकार का ईंधन डालेंगे, उसको कहते हैं एविएशन फ्यूल। ठीक है? या हमारी गाड़ी समझ लो, चलो विमान दूर की बात है, हमारे घर में जो गाड़ी है, समझ लो अपने घर में कोई अच्छी सी गाड़ी है, मारुति है या BMW है, समझ लो मर्सिडीज है, कल्पना ही करनी है तो घटिया, इसमें उसने लिखा होता है कि आप उसके अंदर अनलेडेड पेट्रोल डालेंगे। ठीक है? तो आप वीकेंड के लिए, मजाक के लिए या ऐसे ही चेंज के लिए केरोसिन तो नहीं डालोगे। क्यों डालोगे? हमारे शरीर पर हम इस तरह के अत्याचार क्यों करते हैं? हमारा शरीर जिस प्रकार के ईंधन के लिए बना है, उसी प्रकार का ईंधन डालेंगे। फिर क्या होगा कि वो शरीर अच्छा चलेगा, उसमें कोई खिटपिट नहीं होगी, है ना? तो देखिए, आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जो रोग होते हैं ना, वो इस प्रकार का अप्राकृतिक वर्तन करने के कारण होते हैं। हमारे शरीर का जो रोग है या हमारा जो रोग है, उसको कहते हैं अभी छोड़ो, ये आध्यात्मिक में नहीं बोलूंगा। शरीर का जो रोग है उसको कहते हैं भूख। दैट इज अवर फंडामेंटल डिजीज। फंडामेंटल डिजीज इज हंगर, एंड टू क्योर दैट डिजीज या उस रोग का निराकरण करने के लिए आपको उसमें अन्न डालना होता है। अन्न औषधि होता है। तो अन्न को अगर हम औषधि के रूप में ग्रहण करेंगे, अब देखिए, डॉक्टर ने आपको, आप बीमार होंगे तो कोई दवा दी है, तो दवा आपको खाने में अच्छी लगती है, तो क्या उसकी पूरी बोतल आप एक साथ निगल लोगे? नहीं करोगे ना। उसने जो डोज बोला है कि भाई दिन में सुबह 2 गोली खाओ, शाम को 2 गोली खाओ, और जो अन्न हम खाते हैं उसको हमने अगर औषधि के रूप में लिया और उपयुक्त मात्रा में खाया, योग्य मात्रा में खाया, तो फिर हमारा शरीर जो है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा। ये हमारा अनुभव है, ये हम आपको शेयर करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि आपको इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी और आप इस तरह से रहने का प्रयत्न करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन है, आई थिंक अनिकेत यू कैन गो फर्स्ट फॉर दिस, कि एक्सरसाइज और डाइट दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ जी, तो मेरे ओपिनियन में दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज, हाँ जी, जिन लोग को diet actually is I would say, having been an athlete, I am an athlete. मैंने बहुत वेट लिफ्टिंग की है, मैंने बहुत जिम में ऐसे काम किया है, और मैंने जो देखा है, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर मैंने एक पूरे 6 महीनों के लिए वर्कआउट किया और ठीक से मेरा डाइट मेंटेन नहीं किया, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। परंतु अगर मैंने 6 महीनों के लिए ठीक से डाइट प्रैक्टिस कर लिया और अच्छा खाना खाया, जंक नहीं इंटेक किया, तो उसका असर मेरे फिजिक पे अच्छा ही होएगा। बट इफ इट्स द अदर वे अराउंड, आई जस्ट एक्सरसाइज and did not follow a good dietary pattern or did not eat the right food, then it had more of an effect. So in my opinion, I would suggest that diet is more important than exercise, because if you maintain a proper diet, then you probably won't need the exercise. Does that make sense? I mean, Yes, that's my opinion. Yeah, sure. Yep, thanks Aniket. Actually, diet is more important than exercise. Okay. Yes. एक्सरसाइज हम कर पाए या ना कर पाए, कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन exactly. हम अभी योगासन मैं सिखाता हूँ लोगों को, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि योगासन कब करना चाहिए, तो हम उनको हमारा रूल ऑफ थंब बताते हैं। आने की इच्छा होगी उस दिन आप योगासन करेंगे, ये इतना सिंपल रूल है।
अगर आपको किसी दिन खाने की इच्छा नहीं होगी तो मत करो योगा से, नो प्रॉब्लम, इतना आसान। Right. एक्सरसाइज का भी वही है। तो अगर आपको खाने की इच्छा होगी, जिस दिन खाने की इच्छा होगी उस दिन एक्सरसाइज करो, अगर नहीं हो रही तो मत करो। करेक्ट। सो देवांग, मे बी आपके लिए एक डिफरेंट क्वेश्चन है, वो लेते हैं हम लोग। Yeah. एक बार वेट रिड्यूस हो जाता है तो द स्किन सैग्स, सो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर इट? बिकॉज व्हेनेवर आई रिड्यूस 30 to 35 kgs my skin sags and looks very odd. So since you've lost a lot of weight, maybe you can share your experience. ओके, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ लकीली। एंड ये स्किन का जो है, सो आई वुड से जो 5 तत्व है वो रेगुलरली बॉडी को मिलना चाहिए। मैं वो सारा तत्व, 5 तत्व, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे कार में 5 गियर होती है, हम न्यूट्रल से डायरेक्ट 5th गियर पे नहीं जा सकते हैं। न्यूट्रल से गाड़ी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर गाड़ी स्पीड में चला सकते हैं। सो द फर्स्ट गियर इज आकाश तत्व, मतलब शरीर को भूखा रखना है, उसको आराम करने देना है। जैसे हम अपने आउटर लुक के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे शूज पहनते हैं, बाल को सजाते हैं, कलर करते हैं, अच्छे गॉगल्स पहनते हैं, पर हम कभी अपने किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। मैं तो 42 केस तक कुछ सोचता ही नहीं था, खाना पीना और इसी पे मेरा ध्यान रहता था ज्यादा। और मेरा ऑफिस वर्क ही है, मेरा घर और ऑफिस एकदम नजदीक है, 5 मिनट्स वॉक, और ज्यादा से ज्यादा मेरे को खाली अपने 2 व्हीलर पे या कार पे इधर उधर काम के लिए जाना पड़ता है, कोई श्रम है ही नहीं। इसके लिए मैं मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाता था, फिर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। तो eating habits is more important. So the first tattva is akash tattva, to keep body empty for 14 to 16 hours. Second is vayu tattva. Vayu tattva में हमको green juice पीना चाहिए एंड प्राणायाम कर सकते हैं। मैं प्राणायाम नहीं करता हूँ, बट ग्रीन जूस पीना चाहिए, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है बॉडी को। आफ्टर सम टाइम, मतलब ग्रीन जूस पीना चाहिए, करीब मैं 12 बजे के आसपास पीता हूँ। फिर उसके आधे घंटे के बाद फ्रूट्स खाता हूँ। फ्रूट्स खाने से अग्नि तत्व मिलता है बॉडी को, मतलब वो भूख को प्रज्वलित करता है और पेट की साफ सफाई होती है फ्रूट्स से। और फ्रूट्स कितना खाना चाहिए? 1% ऑफ द बॉडी वेट, जितना आपका शरीर मतलब वजन है उसका 1% फ्रूट्स खाना ही चाहिए ऑन एम्प्टी स्टमक। उससे पहले ग्रीन जूस चाहे पिया है, दैट डजंट मैटर। फिर फोर्थ इज जल तत्व। जल तत्व मतलब जो भी वेजिटेबल्स, जो जूसी वेजिटेबल्स है, टमाटर, ककड़ी, बीट, गाजर वगैरह, मैं तो कच्ची भिंडी, कच्चा आलू भी खा लेता हूँ। पका हुआ जो भोजन है वो डेड फूड है, और जो कच्चा है वो लिविंग फूड है। तो वो जल तत्व हमको उससे मिलता है, क्योंकि उसमें 70% वाटर है। जैसे हम बोलते हैं हमारा शरीर 70% वाटर से बना है, तो जल तत्व हमको लिविंग फूड ज्यादा खाना चाहिए। ककड़ी, टमाटर, बीट, गाजर वगैरह, उसको थोड़ा टेस्टी भी बना सकते हैं। आई ईट बाय ईटिंग इट विद चटनीज, ग्रीन चटनी एंड द खजूर इमली की चटनी, क्योंकि वो हम पकाते नहीं है, मिक्सर में बन जाती है चटनियाँ। उसके ऊपर हम मैं खोपरा मतलब क्रश करके डाल देता हूँ, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेमन यूज कर सकते हैं, जिंजर यूज कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ इज पृथ्वी तत्व, मतलब ग्रेन्स। तो वो अगर वो भी हम पका हुआ खाना छोड़ देंगे तो शरीर और अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि जो भगवान ने, परमात्मा ने जो हमको दिया है, जो चीज जमीन से निकलती है और पेड़ पे उगती है, वही मनुष्य के लिए है। और हम क्या करते हैं कि रॉ फूड लाके, मतलब वो रॉ है ही नहीं है, वो पका हुआ है, कुदरत ने पका दिया है। हम उसको बेकार में कच्चा बोलते हैं, एक्चुअली उसको कुदरत ने पकाया है। पर हम सोचते हैं कि आग पे रखने से, तेल मसाला डालने से वो पक जाता है। वो खाली टेस्टी है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो ये जो स्किन, इन्होंने जो स्किन का पूछा, तो आई थिंक ये पांचों तत्वों का जो मिश्रण है, वो पांचों अगर रेगुलर बॉडी को देंगे तो शायद वो प्रॉब्लम ना होगा। एंड मेन थिंग इज एनीमा, जिसको वजन लूज करना है, मतलब खाने पे कम ध्यान दो और निकालने में ज्यादा ध्यान दो। खाना कम है, निकलना ज्यादा है। पहले का जो कचरा हम लेके घूम रहे हैं, एक्सेस वेट, वो एनीमा से बाहर निकलेगा। अगर हम पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल देंगे तो पहले डीजल तो निकालना पड़ेगा, फिर आप पेट्रोल डालिए तो गाड़ी अच्छे से चलेगी। तो दैट इज द वे, मतलब ये पांचों तत्वों का मिश्रण सब इंपॉर्टेंट है, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे तो एटलीस्ट नहीं हुआ था। उसके लिए एक और हम बताएंगे। देवांग भाई, आपने अच्छा बताया। आप कैसे, आप जरा यंग हैं, जो थोड़ा एल्डरली होता है, जिनकी आयु आपसे अधिक है, उनके लिए ये सैगिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वेट लूज नहीं करना है, जल्दी जल्दी
अपना वजन नहीं घटाना है, धीरे धीरे घटाना है। और हमारे स्किन को स्ट्रेचिंग करना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये योगासन वगैरह हम जो करते हैं या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं ना, उससे वो सैगिंग नहीं होती है। तो ये करना बहुत आवश्यक है। अगर आपको वजन ठीक से कम करना है तो एक धीरे 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 करिए और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, तो फिर आपका स्किन टोन अच्छा रहेगा। और वैसे भी अगर रैपिडली कर भी लिए, जैसे आपने किया, 3 महीने में 30 किलो वजन कम हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद उसका स्किन टोन फिर से आने के लिए उसको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, रेगुलर डाइट रखने की आवश्यकता है, उसको कंटिन्यूस करना है। फिर आप यो डाइट होता है ना, वैसा नहीं करना है कि पहले वजन कम कर लिया फिर बढ़ाया, कम कर लिया बढ़ाया, ऐसा नहीं करना है। आप अगर इस तरह से प्राकृतिक लाइफस्टाइल पे रहोगे तो आपका वजन कम हो जाएगा और कम रहेगा भी। और आपको ये कम वजन में हल्कापन अनुभव होगा तो आप उसी तरह से रहना पसंद करेंगे और फिर रहेंगे उसी तरह से। तो हम इसी तरह का लाइफस्टाइल जो है वो प्रमोट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, लोगों को इसके बारे में शेयर करते हैं। और इस तरह से अगर हम सब लोग रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। Thank you. Thanks, sir. So, Aniket, next one is for you. Have you done your CBC test? Do you have any calcium, vitamins, or any other deficiencies because of following this diet? बिल्कुल, sure, I can answer that question, Pooja. मैंने पिछले कई सालों में काफ़ी ब्लड टेस्ट किए हैं और काफ़ी मतलब साल में तो एक recommended है, तो मैं वही करता हूँ। So far कोई deficiency तो आई नहीं है उसमें, so everything is going fine. जैसे मैंने कहा कि ये सब allergies हो रहे थे और स्किन के पे रैश हो रही थी, तभी मैंने ब्लड टेस्ट किए। और कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी या कोई और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं आई थी, इसलिए it was quite baffling as to क्यों एलर्जीज आ रहे हैं। तो the only thing that was happening was कि I was taking in too much of the wrong food too many times a day, which once I addressed that after learning about diet purification through Sattva.life, everything, all the allergy problems went away and I was able to become more immune and resistant to chronic problems like colds and coughs and things like that. So yeah, to answer your question, no known deficiencies have come out in my blood test reports. Great. Thanks, Aniket. So, Devang, same question आपके लिए. आपने कभी कोई deficiencies face किए हैं while you were नहीं, doing मेरा खाली ओबेसिटी का ही प्रॉब्लम था और मुझे कोई ऐसा शरीर ने कभी कोई तंग नहीं किया है, मुझे कोई चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। विटामिन डी के लिए आई वुड से मैं मिस कर गया बोलना, सनबाथ डेली करना चाहिए, मैं रोज करता हूँ। अभी फिलहाल रेनी सीजन है तो क्लाउडी ज्यादा रहता है, बट अदरवाइज डेली 30 to 40 minutes sunbath on the back is very important and that I do। मतलब रेनी सीजन छोड़ दे बाकी के 7-8 महीने मैं डेली 20 to 30 minutes मिनिमम सनबाथ लेता हूँ। उससे विटामिन डी लेवल मतलब मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट आई कीप ऑन टेकिंग सनबाथ। सो उससे विटामिन डी बढ़ता है, विटामिन डी से कैल्शियम बढ़ता है एंड दैट्स इट। इट्स अ वेरी गुड, मतलब सनबाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अग्नि तत्व हमको सनबाथ से मिलता है एंड बाय ईटिंग द फ्रूट्स। आई डू बोथ। वंडरफुल। और एक मैंने प्रश्न देखा था हमारे चैट में जिसमें लिखा था कि प्रोटीन का हमारा क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए और कैसे इंश्योर करना चाहिए। तो प्रोटीन का ऐसा होता है कि हमारे शरीर की जो आवश्यकता होती है उससे अधिक प्रोटीन अगर हम खाते हैं तो क्या होता है कि आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद जो प्रोटीन बचेगा उसको अपना शरीर कार्बोहाइड्रेट की तरह ही उपयोग में लाता है। तो प्रोटीन में कार्बन होता है और नाइट्रोजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होता है। तो ये नाइट्रोजन जो होता है उसको काट करके फेंक देना होता है। तो आवश्यकता से अधिक प्रोटीन अगर हम खाते हैं तो ये नाइट्रोजन को तोड़ करके ये नाइट्रोजन को हमारे किडनी में से और यूरिन में से फेंक देना पड़ता है। तो जब आप एक्सेस प्रोटीन खाओगे तो आपकी यूरिन में दुर्गंध आएगी अमोनिया की, ठीक है। और अगर आवश्यकता से अधिक प्रोटीन नहीं खाते हैं तो आपकी
कि यूरिन में दुर्गंध नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग का तरीका है। देखो, हम साधारण जो व्यक्ति होते हैं उनको इसके बारे में उतना पता नहीं होता है और इसको कैसे मॉनिटर करेंगे। तो जो हमारे शरीर से हमको वेदनाएं प्राप्त होती हैं उन्हीं से हमने सीखना है। तो हमारे अब जब छोटे होते हैं या छोटे बच्चों का क्या होता है कि उनको आप उनकी आवश्यकता से अधिक खाना खिला ही नहीं सकते, वो खाएगा ही नहीं बच्चा, कुछ भी कर लो, उसका अगर पेट भरा हुआ है तो वो ज्यादा नहीं खाएगा खाना। तो हमारे जो अनुभव होते हैं उसमें पहला अनुभव ये होता है कि मुझे भूख लगी है, ये है ग्रीन सिग्नल। फिर खाते खाते हमको डकार आती है, ये है रेड सिग्नल। तो इस रेड सिग्नल को हमने तोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं तोड़ना है। अगर ऐसा करेंगे ना तो हमारा शरीर बड़ा अच्छा रहेगा और जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से ही हमको जो चाहिए वो हम निचोड़ लेंगे बराबर। आप कभी देखिए ना कि कोई ऐसा पेड़ होता है कि जो on a rocky terrain, on the top of a hill, on the top of a mountain, on the top of a cliff, you will see a tree. तो वहां पर पत्थरों में वो पेड़ कैसे उगा या उसको कहां से पोषण मिलता है? क्या होता है कि जितना पोषण उसे मिलता है उस पोषण पर कैसे रहना ये उस पेड़ ने सीख लिया है। तो हम भी जब हमारे शरीर को आवश्यकता से अधिक वस्तु देते हैं, न्यूट्रिशन, तो उसमें से वो जितना चाहिए उतना ही लेता है और बाकी का उसको फेंक देना पड़ता है। और जब हम हमेशा उसको ज़्यादा देते रहेंगे हर न्यूट्रिएंट के बारे में, यानी प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, या मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गया, या विटामिन डी हो गया, विटामिन B12 हो गया। विटामिन B12 की या डी की हमारे शरीर को एक मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है। उससे अधिक अगर हमने दिया उसको, हमारे शरीर को, तो हमारे शरीर की जो क्षमता है उसको ग्रहण करने की या उसको एब्जॉर्ब करने की, वो क्षमता शार्प नहीं रहती, उसमें कमी हो जाती। हमारे घर में जैसे हमारे बचपन में पानी की कमी होती थी तो हम कुएं में से पानी खींचते थे, तो जितनी हमको आवश्यकता होती थी उतना ही पानी खींचते थे और उतने पानी में चलाते भी थे। अभी क्या हो रहा है कि नल आप खोलो तो पानी गिरता है और पानी 24 घंटा अवेलेबल है, तो पानी वेस्ट भी हो जाता है ना, उसकी कीमत नहीं है हमको। तो जब हम हमारे शरीर को आवश्यकता से अधिक वस्तु देते हैं तो हमारे शरीर की, इसलिए हमेशा अपने शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तु देनी चाहिए या उतनी ही मिलनी चाहिए। तब हमारा शरीर उसको ग्रहण करने में 100% एफिशिएंसी दिखाएगा, हमेशा वेस्टेज कुछ भी नहीं होगा। तो हमारा जो ट्रेडिशनल खाना है वो भी हम खा सकते हैं और जो प्राकृतिक अन्न है उसको हम कम से कम 50% तो करें। अभी आज के दिन में क्या हो रहा है कि हमारा सारा का सारा जो अन्न हम खा रहे हैं वो सारा प्रक्रिया युक्त है, मतलब इट हैज बीन प्रोसेस्ड। ये प्रोसेस्ड अन्न जो होता है उसमें हमको जितना अच्छे से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो कम से कम 50-50 तो करना ही चाहिए। और अन्न को हम अगर औषधि की तरह लेंगे तो हमारा उसमें जो क्रेविंग है, हमने अगर सोचा कि ये अन्न है, ये औषधि है, एंटरटेनमेंट नहीं है, इसको यू यूज दिस एज ए टूल, यू डोंट यूज दिस एज एंटरटेनमेंट। हमने हमारे शरीर को ना टूल नहीं एंटरटेनमेंट डिवाइस करके मान लिया है। ऐसा नहीं करना। ये है प्रकृति की ओर किया हुआ, प्रकृति का अपमान हो गया। उसको हमने सम्मान पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये हमारा अनुभव है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। All right. So next question is, sir, कि if there's no fat in the food, how can we cover that deficiency? फैट ऐसा है कि अगर आप फैट खाओगे, देयर आर गुड फैट्स एंड देयर आर बैड फैट्स एंड देयर आर एक्सेसिव फैट्स। फैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। If you eat good fats, they will be utilized by the body in a good way and they will be very useful to you. Even if you do not eat any fat, carbohydrate gets converted into fat. Carbohydrate खाते हो तो
आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट से फैट तैयार होगा। ओके, तो आदमी जो मोटा होता है ना, फैट खाने से मोटा होगा ये नियम नहीं है। आप आवश्यकता से अधिक खाओगे तब आप मोटे होगे। आवश्यकता से अधिक आपने अगर कार्बोहाइड्रेट भी खाया तो भी इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फैट, और आवश्यकता से कम खाओगे तो फिर आपके शरीर में जो फैट स्टोर किया हुआ है वो बर्न होकर के आपका फैट कम हो जाएगा। तो शरीर फैट को भी इस्तेमाल करता है फॉर एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट को भी करता है। ठीक है, तो उन दोनों में से कुछ भी हम उपयोग में ला सकते हैं। तो ये जो बैलेंस है ये अपने आप को अपने अंदर से पता चलेगा अगर आप इन नियमों का पालन करोगे तो। कौन से नियम है? मुझे जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, और मुझे जब पहली डकार आएगी तब मैं उठ जाऊंगा। ये 2 नियम 7 दिन तक, ज़्यादा नहीं करना। आपके अंदर से आपको बड़ा अच्छा अनुभव आएगा, और उसके बाद में उसके आगे के जो नियम हैं वो आपको अपने आप पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर एक टाइम खाना खाएं उसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट इंक्लूड कर सकते हैं क्या? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर नॉट नेसेसरी। ओके, दूध की आवश्यकता हर मैमल को, यानी जो सस्तन प्राणी होता है उसको, अपने बचपन में उसकी माँ का दूध उसको चाहिए होता है। उसके अलावा दूध की ऐसे कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन दूध पीने से आदमी मरेगा नहीं, वो विष नहीं है। उसको अगर आप पर्याप्त या उचित मात्रा में लेते हो तो उसमें हानि कुछ नहीं है। तो आप उसको अगर पचा सकते हो, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होती है तो आप ले सकते हो, उसमें कोई नहीं है। पर हम ये कहते 2 से अधिक बार खाना ना खाएं। तो आप दूध कब पियोगे? हमारे यहाँ जैसे महाराष्ट्रियन जो खाना होता है ट्रेडिशनल, उसमें सबसे पहले एक आधा कटोरी खीर खाने की प्रथा है, स्वीट। तो खीर तो दूध की बनती है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत दूध चला जाता है। तो खा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स को अगर ना खाएं। डेयरी प्रोडक्ट्स में मेरा जो अनुभव है, तो दूध अगर आपको पीना है तो दूध को आपको उसको उबाल करके उसमें कुछ वो मसाले वगैरह होते हैं, हल्दी, काली मिर्च वगैरह, उस तरह से डाल करके आप उसको काढ़ा करके पी सकते हैं। उससे आपको कोई हानि नहीं होगी। उसके बाद में उसका दही बनता है या उसका छाछ बनता है, उससे मक्खन बनता है और उससे घी बनता है। तो घी जो बनता है ये औषधि युक्त होता है। घी इज द मेडिसिनल प्रोडक्ट दैट इज मेड आउट ऑफ डेयरी। तो घी तो मैं औषधि की तरह खाता हूँ, नॉट एक्सेसिव अमाउंट्स, थोड़ा बहुत खाता हूँ मैं। घी का जो सब्सटीट्यूट है, अगर जिनको डेयरी खाना ही नहीं है तो घी का एक सब्सटीट्यूट है, बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट है, उसको कहते हैं कोकोनट ऑयल। अगर आप एडिबल कोकोनट ऑयल को खाते हो, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, तो वो बड़ा अच्छा होता है खाने के लिए। इट गिव्स यू द सेम बेनिफिट्स एज द घी। तो ऐसा नहीं है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स खाने ही है या ना ही खाने हैं और मुझे अवॉइड ही करना है, ये सारे अगर आप नियम अपने आप पर लगा लोगे तो आप बड़े दुखी हो जाओगे। आपके शरीर को जिस वस्तु की आवश्यकता है उसको आप औषधि के रूप में उपयुक्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, लेकिन अत्यधिक मात्रा में नहीं, अगर देंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसके बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं। ओके, सो नेक्स्ट जो हमको बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि इन इंडिया वी आर गेटिंग वेजीज विच आर फुल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, so always under stress while eating that, so there are very few choice of veggies, so what is your opinion? ग्रेट, तो ये प्रश्न हमारे हर वेबिनार में आता ही आता है। मैंने जितने अभी तक वेबिनार किए हैं उसमें ऐसा प्रश्न आया नहीं, ऐसा एक भी वेबिनार नहीं हुआ। हमेशा मुझसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर विक्रम आप तो अमेरिका में रहते हो, आपको क्या पता है कि हमारे यहाँ कैसी सब्जी मिलती है। अरे बाबा, सब्जी ज़्यादा खाते हो कि पेस्टिसाइड ज़्यादा खाते हो? पेस्टिसाइड तो रेसिड्यू थोड़ा सा होता है ना, तो घर लाने के बाद उसको हम धोएंगे अच्छी तरह से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में हमने खा भी लिया, चलो खा लिया थोड़ा बहुत, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में इतनी इंटेलिजेंस है कि उसके अंदर क्या रखना चाहिए और क्या फेंकना चाहिए हमको नहीं पता, लेकिन शरीर को तो पता है ना। समझ लो हमने कोई एक ऐसी चीज खा ली कि जो खानी नहीं चाहिए थी, गलती से खा ली क्योंकि हमको पता ही नहीं था।
फिर क्या होता है कि शरीर उसको सीधी तरह से अंदर ले भी नहीं जाता है, उल्टी तरफ से उसको बाहर फेंकता है, उसको हम उल्टी बोलते हैं. So if you get acute food poisoning, that food will not be processed by the body in the right direction. It will be thrown out in the wrong direction. Okay, so this intelligence every body has, but this intelligence we have unfortunately abused and it has been converted into dullness. Intelligence बाकी नहीं है अभी, हमने उसके ऊपर इतने अत्याचार किए हैं हमारे सिस्टम के ऊपर कि हमारे सिस्टम को पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है. उसका इंटेलिजेंस सारा डल हो चुका है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसा होता है. तो उसको अगर हम शार्प रखेंगे तो क्या होगा कि हमने समझ लो खाना खा लिया, थोड़ा पेस्टिसाइड भी खा लिया, फिर ये देवांग भाई जैसा करते हैं ना, या हम भी करते हैं कि जो उपवास होता है, क्या होता है कि हमने खाना खाया, उसके बाद करीब 10-12 घंटे में मैक्सिमम वो खाना पूरी तरह से प्रोसेस हो जाता है. उसके बाद आप अगर जब उपवास करेंगे और उसके बाद ही ये शरीर जो है ऐसे पेस्टिसाइड रेसिड्यू को या किसी पैथोजन को, ये जो सब टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं ना हमारे शरीर में, उसको ये फेंक देते हैं. पर हमने अगर वो उपवास नहीं किया तो फिर उपवास करता है उसको ये पेस्टिसाइड का प्रॉब्लम नहीं होता है. सो इफ यू डू दिस detoxification of the body every day, which happens between hours 12 and 60, in the 16-hour fast, for the first 12 hours, the body is processing the food. After that, it processes all the pesticides, all the toxins. They are detoxified and they are removed from the body. भगवान शंकर ने वो कहते हैं कि वो विष का प्याला पी लिया था और उनका कंठ नीला हो गया था वगैरह. हम तो इतना सा ही पी रहे हैं, उन्होंने पूरा गिलास पी लिया. थोड़ा बहुत तो हम खा सकते हैं ना. उसको हटाने की जो इंटेलिजेंस है वो हमारे बॉडी में है, उसको इस्तेमाल करो प्लीज. ये उपवास से होता है. तो उसका उत्तर यह है कि अगर आप इससे खा भी रहे हो तो कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. 12 घंटे के बाद का जो उपवास होता है ना, उसमें वो निकल जाता है, आराम से निकल जाता है. एक और क्वेश्चन है कि रॉ फूड खाने से एसिडिटी होती है, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? रॉ फूड खाने से एसिडिटी नहीं होती है. कोई भी फूड ज्यादा खाने से एसिडिटी होती है. रॉ फूड खाने से तो एसिडिटी कम होती है. ओके, तो आपको अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आप एक काम किया करें कि आपको जब कभी भूख लगती है तब आप खाना खाएं, लेकिन उस खाने में पहले आप जो अल्कलाइन फूड है वो खाइए. अल्कलाइन फूड कौन सा होता है? जैसे मौसम्बी हो गया, या पोमेग्रेनेट यानी अनार हो गया, या फिर आंवला हो गया, या फिर हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक आमसुल करके एक वस्तु मिलती है, उसका इंग्लिश नाम मुझे पता नहीं है, कोकम बोलते हैं उसको, कोकम भी बोलते हैं, आमसुल भी बोलते हैं. इट इज़ लाइक ए प्लम. हमारे यहाँ अमेरिका में प्लम करके एक आता है, उसका सिमिलर है वो, वैसा वो कोकण में वगैरह मिलता है. तो आपके यहाँ अगर नहीं मिलता तो छोड़ो, आंवला तो मिलता है ना हर जगह भारत में. अदरक थोड़ा बहुत आपके यहाँ मिलता है, जैसे ककड़ी हो गई या गाजर हो गया, जो सीजन में. देखिए, ये प्राकृतिक अन्न का एक और एडवांटेज बता दूं मैं आपको. इट इज वेरी वॉलेट फ्रेंडली, यानी आपके जेब के लिए बड़ा अच्छा है ये. आप बाजार जाइए और जो सबसे सस्ती चीज है ना उसको खरीद के लाइए. क्योंकि वो सस्ती क्यों है? क्योंकि इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय नेचर इन लार्ज क्वांटिटीज. तो जैसे आम का सीजन होता है ना, तब आम के पीक ऑफ द सीजन में आम सस्ता हो जाता है. तो जो सबसे सस्ती चीज होती है ना उसको ले आइए, और वो चीज कम से कम 50% खाइए आपके खाने में. तो क्या होगा कि पैसा भी बचेगा. और प्रकृति का ये नियम है, प्रकृति आपसे कह रही है कि मैंने इस वस्तु को आपके लिए निर्माण किया है प्रचुर मात्रा में, तो आप इसको प्रचुर मात्रा में ग्रहण करो. ये है प्रकृति का नियम. तो 50% आपका जो खाना है वो ये सब खा लो, और फिर उसमें अगर डकार आ गई तो रुक जाओ. एसिडिटी आपकी एक दिन में गायब हो जाएगी, एक दिन में. ओके, एक है कि सेसमे ऑयल खा सकते हैं क्या? मींस तिल का जो तेल होता है वो खा सकते हैं क्या? तिल का तेल बिल्कुल खा सकते हैं. तिल का तेल विंटर में, जाड़े में अच्छा होता है.
समर में नहीं होता है, क्योंकि इट मे बिकम टू वार्म फॉर यू। 12 ही महीने अगर खाना है तो मूंगफली का तेल हम खाते हैं, वो तो अच्छा रहता है हमारे लिए। या जो कोकोनट ऑयल होता है वो भी अच्छा होता है। जो आपके यहाँ इजीली अवेलेबल है, आपके एरिया में जो अवेलेबल होता है ना, उसको आप उपयोग में लाइए, वो अच्छा होता है आपके लिए। और जिस सीजन में जो वस्तु बनती है उसी का अगर तेल हम खाएंगे तो अच्छा होता है। जैसे विंटर में तिल आता है ना, ठीक है, तो उससे हीटिंग कैपेसिटी उसकी थोड़ी ज़्यादा है, तो वो अच्छा होता है खाने के लिए। Okay, can you give detailed explanation of various tattvas and the food involved in each? चलो देवांग भाई, ये आपके लिए प्रश्न है, आप बताइए। मैं अभी काफी बकबक कर लिया मैंने। सॉरी, मैंने सुना नहीं। अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके लिए किस तरह का हाँ। खाना खाना चाहिए? ओके, मुझे थोड़ा यहाँ पे ऐड करना है कि हमारे शरीर में बीमारी के सिर्फ 2 कारण है, मुख्य कारण। एक, हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है, जो एल्कलाइन होना चाहिए। वो एसिडिक इसके लिए है क्योंकि हम पका हुआ भोजन काफी मात्रा में खाते हैं। एल्कलाइन तभी होगा ब्लड अगर हम कच्चा खाना, जूसेस ज्यादा पिएंगे, मतलब ककड़ी, टमाटर वगैरह खाएंगे, फ्रूट जूसेस पिएंगे, तो ऑटोमेटिकली ब्लड विल स्टार्ट गेटिंग एल्कलाइन। एट द सेम, दूसरा रीजन है हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स भरे हैं। कुक फूड खाने से टॉक्सिन्स इतने भरे हैं, उसको बाहर निकलना है। तो आप खा तो लेंगे कच्चा खाना, पर पहले का जो कूड़ा अंदर जमा है, जिसकी वजह से बीमारी होती है, जो कचरा अंदर हमने जमा कर लिया इंटेस्टाइन्स में, उसको बाहर निकालना है। तो उसके लिए एनीमा करना जरूरी है। एनीमा करते रहेंगे, टॉक्सिन्स बाहर आते रहेंगे। कच्चा भोजन खाएंगे, अल्कलाइन फूड खाएंगे, जूसेस पिएंगे, तो ब्लड ऑटोमेटिकली अल्कलाइन होगा। उसके कारण सारी बीमारियां, छोटी से बड़ी बीमारियां सब गायब हो जाएंगी। और आकाश तत्व मतलब उपवास, वो बहुत जरूरी है। हमारे ओजस लाइफस्टाइल में काफी ऐसे केसेस हैं कि जिनको हेडेक से लेके इवन कैंसर भी रिवर्स हुआ है। फर्स्ट स्टेज कैंसर दैट हैज बीन रिवर्स्ड जस्ट बाय ईटिंग रॉ फूड एंड डूइंग एनिमा एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये बहुत जरूरी है। मतलब एनीमा करने से टॉक्सिन्स बाहर आता है। हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैं अभी दौड़ने जाता हूँ या चलने जाता हूँ, तो खाली कैलोरीज बर्न होती है। पर अगर मैंने घर पे आके मैंने 2 डोसा खा लिया, तो उतना वापस कैलोरी मैंने इनपुट कर लिया। अगर मैंने बड़ा मग चाय का पी लिया तो खलास हो गया। तो वो तो कैलोरी की बात हुई। एक्सरसाइज करने से कैलोरीज लूज होगा, पर टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। तो टॉक्सिन्स एनीमा से बाहर निकलेगा। कच्चा भोजन ज्यादा खाएंगे तो ब्लड एल्कलाइन होना शुरू होगा। तो वेट लॉस तो बहुत छोटी मोटी बात है, बीमारियां भागना शुरू हो जाएंगी। कोई बीमारी की हैसियत ही नहीं है कि हमारे शरीर में वो रह सके। अगर हम उपवास ज्यादा करेंगे तो वो जो बीमारी के सेल्स हैं, उनको पोषण हमारे भोजन से ही मिलता है। हम खाना ही नहीं खाएंगे, उनको पोषण कहाँ से मिलेगा? और एनीमा करेंगे, उनको बाहर फेंक देंगे, फ्लश आउट कर देंगे। और पांचों तत्वों को इक्वली देना है। उपवास भी टाइम टू टाइम करना है। खाली 3 चीजें कर लीजिए। उपवास कीजिए 14 to 16 आवर्स, ग्रीन जूस पीजिए, वायु तत्व एंड एनीमा। अगर ये 3 भी कर लेंगे तो छोटी से बड़ी बीमारी भागना शुरू हो जाएंगी। Right, thanks Devang. Next अनिकेत के लिए है, where the question is कि आपने जब ये स्टार्ट किया डाइट, तो कुछ स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेशन तो हुआ होगा, डाइट तोड़ने की इच्छा हुई होगी, तो उसके साथ आपने कैसे डील किया? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसका जवाब है कि मैंने एक्चुअली बैलेंस किया। क्या है कि सुबह मैं जब ऑफिस के लिए निकलता हूँ तभी मैंने फ्रूट्स लिए साथ में ब्रेकफास्ट के लिए। तकरीबन 9:30-10 बजे वो फ्रूट्स खाता था। फिर दोपहर को लंच के लिए 1-1:30-2 बजे मिक्स्ड रॉ वेजिटेबल्स, स्पिनच, लीव्स, ब्रोकली, क्यूकम्बर, कैरेट, स्प्राउट्स, वो खाता था। और फिर वो जो कुक फूड की जो आपने कहा फ्रस्ट्रेशन, मिसिंग आउट ऑन कुक फूड, मैं घर आके वो थोड़ा बहुत कुक फूड रेडी होता था, सो आई वुड बैलेंस इट ताकि आई डोंट मिस इट ऑल्सो, आई डोंट मिस द कुक फूड एंड आई एम ऑल्सो इन गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग रॉ फूड। तो उसमें मेरे 3 मील्स हो गए। सुबह का फ्रूट्स, नेचुरल फूड जो फ्रूट्स है वो मेरा ब्रेकफास्ट होता था। दोपहर को नेचुरल फूड जो अनकुक्ड रॉ वेजिटेबल्स जो मैं साथ में लेता था ऑफिस के टाइम, वो मेरा नेचुरल फूड होता था, रॉ फूड होता था। और फिर घर आके फ्रेश लाइटली कुक फूड मेरा दाल चावल होता था। तो आई कॉम्पनसेटेड फॉर इट। आई थिंक द बिगेस्ट थिंग फॉर मी जो मोटिवेशन था टू
eliminate the frustration was that by being fit, by taking away all the toxins from my body, I am being fit, and by being fit, I am fulfilling the responsibilities that I have to do as a father, as a son, as a husband, as a brother, and as a human in this planet, as a believer in humanity and in doing good. Because if I don't take care of myself, then how can I fulfill all these responsibilities? So वो जो responsibility है, वो जो discipline चाहिए था, that was more powerful for me than the frustration of just eating raw food. So to offset that frustration, it was this discipline which I incorporated into myself that helped me overcome the frustration. The discipline of fulfilling my responsibilities as I just explained. And if you balance the raw food with the lightly cooked food, I would recommend that as a solution to solving this frustration about only eating raw food, if you balance it out. Does that answer the question, Pooja, you think? Yeah, I think, yeah, that makes sense. And then if you really need to lose weight, if that should be motivational enough for sticking to the discipline, at least till you achieve that. And then you can take some liberty sometimes. But if you're mostly on raw diet, the way you feel, then you do not feel like going back to cooked food as much as you do usually. So even a little bit of cooked food will satisfy you, like you said, right, Aniket? A little bit of dal chawal was also making you feel good. Same as my experience too. Right. Main thing is, I think, Pooja, is eating, even if you are eating the cooked food, and if Vikramji, you can also add in that as long as you eat it within about 1 or 2 hours of it being cooked, then it is a better chance of the food being digested properly by the body. Ultimately, after the food is cooked, then it starts degrading, and then usme bacteria jama hoti hai if it's kept for too long. But if you eat it, if it's lightly cooked, like dal, roti, sabzi, as close to natural as possible. Log aise bahut, there are a lot of non-vegetarians that eat meat and all. In that case, you have flesh trying to digest, flesh. But if you keep it to light dal, chawal, sabzi, which is cooked, but you eat it within a few hours of it being cooked, then there's a better chance of it being assimilated in your system more efficiently. Vikramji, you can perhaps elaborate on this more. या जैसे हम खाना पकाते हैं ना, उसके बाद में जितनी देर तक वो रहेगा पका हुआ खाना, उतना उसमें से जो सत्व है और कम होते जाते हैं. तो पकाने से भी, जैसे हमने सब्जियां वगैरह पकाई, तो सब्जी में का जो सत्व होता है वो कम हो जाता है थोड़ा बहुत. ओके, दाल चावल तो आपको पका करके ही खाना होगा, ठीक है? तो जैसे दाल चावल आप पकाओगे, पकाते ही साथ उसको खा लो. तो हम तो फ्रॉम द स्टोव टू द प्लेट इनटू द बॉडी, ऐसा अगर करेंगे, ये आइडियल है. अब हमेशा ऐसे होगा कि नहीं होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन एज क्लोज टू द कुकिंग टाइम एज पॉसिबल इज बेटर फॉर अस. जैसे हमने बना लिया खाना 1 घंटे के अंदर, खा लो उसको. तो ऐसा खाने से शरीर उतना हेवी नहीं होता है. लेकिन जब हम उसको और समय के बाद खाएंगे तो क्या होता है कि उसमें से वस्तु ज़्यादा जाएगी हमारे शरीर के अंदर, लेकिन उसमें से सत्व जो होगा वो कम मिलेगा अपने को. तो जितना सत्व मिलना चाहिए उसके लिए हमको बहुत अधिक मात्रा में खाना पड़ेगा, और फिर गोबर तैयार करना पड़ेगा. ऐसा नहीं करना चाहिए. तो जितना हम मैक्सिमम नेचुरल खाएंगे उतना अच्छा है हमारे लिए. तो दाल तो हम खा सकते हैं. दाल कैसे खाते हैं? रात को भिगो के रख के, अगर स्प्राउट करेंगे तो स्प्राउट करके खाओ, नहीं तो ऐसे ही खा लो. और अगर आपको कच्चा खाना नहीं पसंद है तो मैं एक आपको रेसिपी बताता हूँ. ये हमारी मूंग की जो दाल होती है ना, उसको आप ओवरनाइट भिगो के रख दो और फिर उसको मिक्सर में ग्राइंड करो और उसका डोसे जैसा डोसा बन जाता है. उसको पेसारेट्टू बोलते हैं साउथ इंडिया में, और वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में. तो उसको अगर आप खाएंगे तो अच्छी लगती है आपको. मतलब मुझे तो अच्छी लगती है, मैं खाता हूँ, कई बार खाता हूँ. कोई दाल होती है या फिर वो स्प्राउटेड होती है, उसको मैं ऐसे ही चबा चबा के खा लेता हूँ. उससे क्या होता है कि कम मात्रा में आपको अधिक ऊर्जा मिलती है. यानी यू आर यूजिंग फूड मोर एफिशिएंटली, सो यू आर क्रिएटिंग लेस गार्बेज एंड यू आर कन्वर्टिंग मोस्ट ऑफ दैट फूड इनटू एनर्जी. इसी तरह से एफिशिएंटली चलाना है ना अपने मशीन को, हमने इनएफिशिएंटली क्यों चलाना है? Nature expects us to use this body efficiently. See, if you look at any other animal in nature,
They know exactly what to eat. They know exactly how much to eat. They know exactly when to eat. मनुष्य प्राणी जो है ना, वो इतना अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है, अनफॉर्चुनेटली। मनुष्य अगर प्राणी की तरह रहने लगे कम से कम, तो क्या करेगा? जब भूख लगेगी तभी खाएगा, और जितनी भूख है उतना ही खाएगा। उतना जब हम ये करने लगते हैं, पहला नियम जो मैंने बताया, वो नियम करने के बाद हम प्राणी बनते हैं। उसके बाद में हम सोचेंगे कि मनुष्य है ना क्या। ये मनुष्य ये सारे जानबूझकर, समझकर, सोच समझकर कर सकते हैं। तो इसको अगर हम सोच समझकर करेंगे तब हम सही अर्थ में मनुष्य बनेंगे। और यही तो है ना मनुष्य जीवन का सार्थक, कि मनुष्य की तरह रहना, ये मनुष्य जीवन का सार्थक है। लेकिन हम अगर मनुष्य का देह है लेकिन रह तो रहे हैं प्राणियों की तरह, फिर क्या होगा? प्रकृति हमसे कहेगी कि भाई मैंने ही गलती की है, तुमको मैंने गलत प्रकार का शरीर दिया, अगली बार तुमको मैं बराबर शरीर दूंगी जैसा तुमको चाहिए वैसा। ऐसा हो जाएगा। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। Right. तो हम ये 2 नियमों का पालन करेंगे पहले। Okay, next one देवांग जी के लिए है कि लिक्विड डाइट पे आप क्या लेते थे? वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, एक बार अपना लिक्विड डाइट का थोड़ा रेजिम बताइए। Yeah, I start my day. I mean, around 12 o'clock, I have the green juice. Green juice मतलब सब green leafy vegetables. जैसे खाली 3-4 चीज कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं ज्यादा करके दूधी, बॉटल गॉर्ड, ककुम्बर, ककड़ी, करेला, इसका बेस बना सकते हैं। उसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक चीज का, सब करना जरूरी नहीं है ऑलवेज, जो भी अवेलेबल हो। इसके अलावा पालक, धनिया, पुदीना, कोई भी लीव्स, जैसे पान, हम नॉर्मल पान वाले के पास पान खाते हैं, बीटल लीव्स, वो भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, ऑल लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। और इसको मिक्सचर में डाल दो थोड़ा पानी के साथ, और टेस्ट के लिए नींबू, अदरक, ब्लैक सॉल्ट एंड सेंधा नमक, इसमें से 2-3 चीज डाल दो और उसको बना के पियो। सो दैट गिव्स ऑक्सीजन टू द बॉडी, वायु तत्व। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रूट जूसेस, सिट्रस फ्रूट्स, जैसे विक्रम सर ने बताया, मौसम्बी, संतरा, वाटरमेलन, पाइनएप्पल जो है, उसके अपार्ट मैं तो केले का भी स्मूदी बना के पीता हूँ कभी कभी। केला, चीकू, उसके अंदर डेट्स डाल सकते हैं। सो जूसेस, गन्ने का जूस, मैंने एकादशी में जब मैं फ्रूट्स पे था तो मैंने पूरा दिन खाली गन्ने के जूस पे भी निकाला है। दिन में 8 गिलास, सुबह को 2, दोपहर 2, शाम को 2, कभी 6 गिलास में पूरा दिन कंप्लीट। 2 गिलास पियेंगे गन्ने का जूस, आपको 2 घंटा भूख नहीं लगने वाली। और ये सब अगर मन से करेंगे, हैप्पीली करेंगे, और पका हुआ भोजन जो है वो टोटल नशा है। जैसे दारू का नशा होता है, जो दारू पीते हैं उनको दारू का नशा यहाँ से होता है, पेट से नहीं होता है। इन द सेम वे कुक फूड एक नशा है, चाय का नशा है, कॉफी का नशा है। आप फ्रूट जूसेस पे आइए, अपने आप वो नशा बंद हो जाएगा। तो पका हुआ खाना हम ज्यादा करके भूख के लिए, हम प्लेजर के लिए खाते हैं, मतलब भूख मिटाने के लिए नहीं। कच्चे भोजन से भी पेट भरता है। हम जब ये निवाला नीचे उतरते हैं तो पका हुआ भोजन का निवाला नीचे उतर जाता है, फिर हमको थोड़ी पता चलता है कि हमने रोटी सब्जी खाई है कि खाली ककड़ी खाई है, बर्गर खाया है कि खाली टमाटो खाया है। तो कुक फूड इज वो नशा है और कुछ नहीं है। उसमें तेल मसाले हैं, दैट इज टेस्टी फूड। इट ओनली सेटिस्फाइज आवर टंग। जो हमारे टेस्ट बड्स हैं उसको खुश रखने के लिए हम ये करते हैं। पेट तो कच्चा खाना ही मांगता है, और फिर हम दवाई खाते हैं किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स के लिए। जबान के लिए कभी कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर किडनी के लिए डॉक्टर के पास जाओ, लीवर के लिए डॉक्टर के पास जाओ, हार्ट के लिए जाओ। कचरा हार्ट में जाम हो गया तो चलो बाईपास करते हैं। घुटने में जमा हो गया तो आर्थराइटिस, लीवर में जमा हो गया तो लीवर सिरोसिस। कच्चा खाना खाइए, केवल 3-4 घंटे में पच जाएगा। तो शरीर को और थोड़ी भूख लगेगी, फिर से कच्चा खाना खाइए तो किडनी, लीवर को आराम मिलेगा, तो उनकी लाइफ बढ़ेगी, दवाई खानी नहीं पड़ेगी। और दवाई हम खाते हैं, डॉक्टर से लेके आते हैं, केमिस्ट से, तो वो लिख के नहीं देंगे कि आपका ये जड़ से निकल जाएगा। कच्चा खाना खाएंगे तो आपकी बीमारी जड़ से निकल जाएगी, by giving all the 5 elements to the body and enema for few days as and when required. ग्रेट, थैंक्स देवांग। सो एक और क्वेश्चन है देवांग, स्पेशली आपके लिए है, कि जो फ्रस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन था, राइट, जो अनिकेत ने आंसर किया, आपका क्या टेक है उस पे, कि आप जब वेट लॉस जर्नी पे थे तो आप
कुक्ड फूड खाने की आपको कभी क्रेविंग नहीं होती थी या फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था? आपने कैसे उस चीज को हैंडल किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने मतलब एकदम इतना मैंने खुद को पॉजिटिवली भर दिया, इतने वाइब्स मेरे में इतने अच्छे आ गए सेमिनार सुनने के बाद कि मैंने आई स्टार्टेड लविंग माय बॉडी। मैंने सोचा कि वो जो फिल्म स्टार होते हैं वो क्यों इतना फिट होते हैं और मेरा पेट क्यों इतना ज्यादा बड़ा है, तो मैं भी अपना फिटनेस पे ध्यान दूंगा। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, इनफैक्ट मेरी हेल्थ सुधर गई, वेट लॉस हो गया, मेरा मेंटली भी मुझे फायदा हुआ। पहले छोटी छोटी बात पे कभी मैं अपसेट होता था, कभी गुस्सा आता था, कभी मतलब गुस्सा आना, टेंशन हो जाना छोटी बात पे। और अभी मेरे अंदर पेशेंस इतना बढ़ गया है, मुझे छोटी बात पे कभी अभी गुस्सा नहीं आता है, ना मेरा टेंशन होता है। मतलब पेशेंस उतना बढ़ गया है। और ये सब मैंने मतलब ये फॉलो करना है तो हैप्पीली फॉलो करना है। मतलब अगर आप कच्चा खाना किसी के बोलने से मुंह में घुसेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको खुद को मोटिवेट करना है कि नहीं, आई वांट टू लिव। जैसे मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ, मैं 100 साल जीऊंगा और हेल्दी रहूंगा। आगे की जिंदगी मैं अपने फैमिली मेंबर्स पे मेरे को डिपेंडेंट नहीं रहना है। मेरे को बेटे को उसको चिंता नहीं करवानी है कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाए, वो ध्यान देगा नहीं देगा किसने देखा है। मैं आई वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। आगे की जिंदगी मुझे दवाई नहीं खानी है। दवाई के पैसे खर्च करने से अच्छा है, डॉक्टर को पैसे देने से अच्छा है कि कच्चा खाओ, फार्मर्स को पैसे दो, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। आई ईट कुक फूड, मैं वो भी सब मजा करता हूँ, पर दिन में एक बार। कुक फूड ओनली डिनर, सो दैट इज इनफ। मतलब वो क्रेविंग्स को इनफ, दैट इज वेरी इनफ। और मुझे कोई मतलब आप खुशी से करेंगे तो सब हो सकता है। दैट्स अ ग्रेट आंसर देवांग भाई। हमारे यहाँ हमसे आज जुड़े हुए हैं श्री जय सिंह खानवे, जिनका इसके बारे में काफ़ी अच्छा अनुभव है। तो हम जय सिंह जी को कहेंगे कि अगर आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और है वो हमसे अगर आप शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। जय सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन अनम्यूट हो नहीं रहे हैं आप। तो आप अपने आप को अनम्यूट करके देखिए अगर होता है तो। और जब तक आप ये प्रयत्न कर रहे हैं तब तक मैं हमारे अच्छे मित्र हैं वेद प्रकाश जी जायसवाल, वो अगर आपको अपने आप को अनम्यूट और आपका अनुभव हमसे शेयर करें। नहीं हो रहा है, मेरे से तो नहीं हो रहा है फॉर सम रीज़न। तो वेद प्रकाश जायसवाल जी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि आप डायबिटीज़ के बारे में बात करिए। तो डायबिटीज़ ऐसा है कि जब हम आवश्यकता से अधिक खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से ना ऐसा होता है कि शरीर का जो अन्न है उसका जो कन्वर्शन है, उसका जो रूपांतर है वो होना चाहिए रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ऐसे सप्त धातु होते हैं, उनमें उनका रूपांतरण होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो फिर क्या होता है कि अन्न का जो रूपांतर है उसका आमविष तैयार होता है, यानी मल तैयार होता है, और उसको हमारे शरीर से हमको फेंक देना पड़ता है। और ये अगर मल या आमविष तैयार होने की प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती रही तो अनेक प्रकार के मेह होते हैं। उसमें मधुमेह यानी डायबिटीज ये एक प्रकार का मेह है। तो इतने आगे तक हमने जाना ही नहीं है, यानी हमने बहुत सारे रेड सिग्नल्स को तोड़ने के बाद में फिर डायबिटीज होता है। तो रोकना है या होने ही नहीं देना है। तो ये दो जो नियम है ना हमारे, उसको हमने पूरी आयु इनका पालन करना है। तो जैसे हम जब बच्चे होते हैं तो उस नियम का पालन हम स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से करते हैं, उसको हम क्यों भूल जाते हैं? तो हम बच्चों की तरह रहें कि हमको जब भूख लगेगी तभी हम खाना खाएं, और जब हमारा पेट भर जाएगा आती है तो फिर पहली डकार आती है तो आप रुक जाइए। इस तरह से हम लोग अगर रहेंगे तो आपको डायबिटीज किसी को भी नहीं होगा, और अगर हुआ है तो वो रिवर्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा। हमारे कई मित्र ऐसे हैं कि जिनको डायबिटीज था या ब्लड प्रेशर था या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी या ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम थी, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स
इस प्राकृतिक अन्न से और इंटरमिटेंट फास्टिंग से चले गए, जाने ही चाहिए, गारंटीड है, करके देखो। और पूजा जी, और कोई है हमारे लिए प्रश्न? हाँ है तो वैसे काफी। Where do we place soups in the menu? सूप्स तो पी सकते हैं हम, सूप्स हम खाना खाने से पहले सूप खा सकते हैं, पर अगेन वो सूप ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक उसमें थोड़ा सा वो सब्जियां वगैरह डालते हैं, वो पूरी उबली हुई नहीं होती, उस तरह का सूप हम पी सकते हैं। पर उसमें क्या होता है कि पानी ज़्यादा चला जाएगा और न्यूट्रिशन कम होगा ना। ठीक है, जब आप you want to give your body lower calories than necessary, you want to reduce weight, तब सूप पीना अच्छा होता है, यानी you will fill up your body but you will not get too many calories, तो तब सूप पीना अच्छा होता है। जैसे आपको अगर शाम के खाने में लाइट खाना खाना है तो आप शाम को बिफोर सन कटोरे, बस उतने पे ही रहो, अगर आपको वजन कम करना है तो। लेकिन अगर आपको वजन बढ़ाना है तो फिर आपको अलग प्रकार का अन्न खाना होगा। तो सूप तो खा सकते हैं, आप अवश्य खाइए, एवरी नाउ एंड देन यू कैन हैव सूप। मैं भी खाता हूँ, हमारे यहाँ ब्रोकोली का सूप बड़ा अच्छा बनता है, दैट समटाइम्स आई विल ईट। ओके। और कोई प्रश्न? नर्व्स के कमजोरी के लिए नेचुरोपैथी में क्या कर सकते हैं? हाँ, तो अभी मैंने जो बताया ना, अन्न का रूपांतर कैसे होता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो ये 6th ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन बराबर हो रहा है तो फिर वो जो मज्जा है, दैट इज द नर्वस सिस्टम, नर्व्स, उसका पोषण या उसका रूपांतरण अच्छी तरह से होता है। तो उसके लिए ये सब प्यूरिफाई करना आवश्यक है। तो सारे जो हमारे धातु हैं उसको प्यूरिफाई करते करते गए तो वो होता है। तो उसके लिए अन्न प्योर होना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है वही अन्न, उपयुक्त मात्रा में और आवश्यक हो तभी, यानी जब हमें भूख लगती है तब। तो पहले वो डकार वाला भी छोड़ दो, एक ही नियम का पालन करो कि मुझे जब तक भूख नहीं लगती है तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर क्या होगा कि मैंने आवश्यकता से अधिक खा लिया एक समय पे, तो फिर डकार आने के बाद भी खा लिया, चलो छोड़ो, खा लिया, फिर क्या होगा कि अगर मुझे 6 घंटे के बाद भूख लगनी चाहिए थी तो 8 घंटे के बाद लगेगी, क्योंकि हमने ज़्यादा खा लिया। तो फिर रुको 8 घंटा, किसने ज़बरदस्ती की है कि 6 घंटे के बाद खाना ही पड़ेगा करके फिर से मत खाओ। तो ये है, तो ये नियम हम अगर उसका नियम, इस नियम का पालन करते रहेंगे या करने लगेंगे तो फिर उसके आगे के जो नियम हैं वो नियम हमारे हृदय में प्रकट होंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इसका अनुभव मैंने किया है। इसलिए मैं भी बहुत खाता था, ये देवांग भाई के जैसा फोटो है ना, उनका फोटो देख के वो खुद ही डर जाता, ऐसा मेरा फोटो देख करके पुराना वाला मैं खुद डर जाता। हमारी भी कहानी वही है। और इसलिए मैंने देवांग भाई को बुलाया यहाँ पे, मैंने बोला कि देखो भाई, आप इन लोगों को सबको समझाओ कि अगर आप अपना फोटो देख करके अभी डर रहे हो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, जिससे आपको अपना फोटो देख करके बाद में डर नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। अभी देवांग भाई को देखो, अभी थोड़ा वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है करके वो बड़े दिख रहे हैं, लेकिन वो ऐसे लाइट बहुत हल्के फुल्के हैं। करेक्ट? राइट। तो अनिकेत और देवांग के लिए आपको डायबिटीज या हाई बीपी या कोई थायराइड प्रॉब्लम थी जो इससे क्योर हुआ? Okay. Like I said, मेरे blood test हो चुके हैं और उस रिपोर्ट में ऐसे कुछ था नहीं जो डायबिटीज या थायराइड की वजह मेरा कुछ प्रॉब्लम है। तो I already explained what my issues were, which were the allergies, on the rashes, which were resolved by following diet purification. And also what I found was not only were my rashes resolved, my allergies resolved, but also I became more fresh, more active. I didn't require as much sleep.
जैसे कि लोग कहते हैं कि you should sleep whatever 8-9 hours, you should never compromise on sleep. Of course that is true, but I just felt more light and more energetic by following the principles of diet purification that I learned from Bikramji and Sattva.life, and also not as susceptible to chronic problems like cold and cough. That way I've become more healthy by not being susceptible to recurring illnesses, and that way I'm able to fulfill my responsibilities. So that's what I have to say. Great. Thank you. Can I answer? Yeah, sure, Devang. ओके मुझे बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल तभी तक कुछ नहीं था जब से मैंने अपना लिया. अगर मैं नहीं अपना था तो श्योरली कुछ ना कुछ आना ही था, क्योंकि मेरे फैमिली हिस्ट्री में बीपी, ब्लड प्रेशर मेरे डैडी को है, चाचा को है, आंटीज को है, ग्रैंडफादर को था, सबको था. बट एक एग्जांपल देना चाहूंगा. मेरे डैडी को लास्ट ईयर एट द एज ऑफ 69, अभी 70 इयर्स के हैं, लास्ट ईयर डायबिटीज डिटेक्ट हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम. और डैडी बोले चलो डॉक्टर के पास जाते हैं. तो मैं डैडी को ये सब अपनाने के लिए बोलता हूँ, पर मेरे डैडी इसमें का कुछ मैं जो फॉलो कर रहा हूँ ऐसा कुछ फॉलो नहीं करते हैं. बट ही इज वेरी कंट्रोल इन हिज डाइट्स. 2 टाइम ही खाना खाते हैं, 2 टाइम चाय पीते हैं और 2 टाइम दिन में वॉकिंग करते हैं. तो वो कच्चा खाना वगैरह है वो बोले मुझसे नहीं होगा. जब डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, डॉक्टर के पास गए, फैमिली डॉक्टर, तो उन्होंने 2-3 चीज बताई. मुझे लगा कि अभी एक दवाई ना शुरू करे तो अच्छा है, क्योंकि डैडी को समझाना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने खाली बोला जस्ट मतलब बॉर्डर लाइन के ऊपर ही आया था. तो उन्होंने 2-3 चीज बंद करने के लिए बोल दी, चाय, चावल, पोटैटोस, बस इतना बोला, इतना बंद करो और 15-20 दिन बाद रिपोर्ट निकालेंगे. मैंने घर आके डैडी को खाली इतना कन्विंस किया कि डैडी जो डॉक्टर ने बोला है वो कीजिए, मेरा एक बात मानिए, आप एनिमा कीजिए. और उन्होंने मान लिया मेरा बात. और 15 दिन के बाद डैडी को कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना था, टिकट्स आ चुकी थी. तो 13 दिन एनिमा किया, ट्वाइस अ डे. 14 को रिपोर्ट निकाला एंड डायबिटीज वाज रिवर्स्ड. इट वाज जस्ट अबाउट द नॉर्मल लाइन, बॉर्डर लाइन, कोई ऐसा ज्यादा नहीं था. 15वें दिन को चले गए, 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया, फिर से डायबिटीज आया नहीं है. एंड आई नो पीपल जिनके 20-20 साल की इंसुलिन बंद हो गए हैं. 20-20 साल की इंसुलिन बंद हो गए. इफ यू गिव ऑल दिस 5 तत्वस एंड एनिमा, any disease can be reversed by ये 5 तत्व शरीर को देने हैं और एनिमा करना है as and when required. It's that much simple. थैंक यू देवांग भाई. हमें एक प्रश्न आया था, मैंने जो देखा था चैट में, उसमें लिखा है कि आपको आफ्टर 59 डायबिटीज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा. अगर आप ठीक से नहीं रहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप ठीक से रहोगे तो नहीं होगा. 59 के बाद भी डायबिटीज होना चाहिए ऐसा कोई नियम थोड़ी है. देखो, डायबिटीज होगा या ब्लड प्रेशर जो है ना, ये आपके जेनेटिक हिस्ट्री पर डिपेंडेंट है. लेकिन रोग होगा कि नहीं होगा ये आप पर निर्भर करता है. वेदर आई विल गेट सिक और नॉट, वेदर आई विल हैव ए डिजीज और नॉट इज डिपेंडेंट अपॉन मी. What kind of disease I will have, that is dependent upon my heredity. But whether I will have disease or not, that is dependent upon me. So if we stick to these rules, fundamental rules of nature, then nature has designed our system to be healthy. Nature has not designed us to be diseased. Nature has designed us to be always at ease. But we create imbalances because of our wrong behavior, and that is why we get dis-ease. So if we follow nature's laws, and the first law of nature is I will not eat until I am hungry. That is the bottom line. You start from there. Start following that one rule. Unless you get the green signal, don't start your car. And when you get the red signal, I'm full, means I burp, then stop. Don't jump that red signal. So if you follow these green and red signals about eating, that is the fundamental discipline we have to inculcate within ourselves. If we are unable to inculcate this much discipline, this is the KG1 class. We will not go further. I hope this is clear. Yeah. Pooja, any other questions? I think we are almost an hour and 45 minutes. So I appreciate everybody's coming here. If there are any further questions, feel free to send us comments, questions
on our website. You email us or you Yeah. sattva.life, sattv.life. So you are most welcome to contact us and we'll be happy to help you further. Yeah. So Thank I've you very shared much my, for attending. yep, Boliye, Pooja. we've shared our screen. You can see our contact details here. So feel free to reach out. We might have not been able to answer all the questions, though we tried our best, but we are happy to connect. And I'll really like to thank Aniket and Devang for spending time with us today. I hope it inspired and motivated our participants. So thank you so much. Thank you, Vikramji. Thank you, Pooja. Thank you, you. everyone, for attending. Thanks. Thank you, Vikram sir. Thank you, Pooja. Thank you all. Namaste, everybody. Have a wonderful evening in India and have a good day, all of those in America. Bye-bye. Bye.